or you on behalf of the whole class. थोड़े से कुछ ground rules class के लिए please आप लोग भी I'd expect some of you to have your cameras on so that you know Bilal also seems like he's not talking to the screen and is talking to some people around. Yeah. So yeah. Questions वगैरह बिलाल आप बता दीजिएगा if you want to take in the middle या if you want to take in the end, it's up to you. Okay. So yeah. So go ahead, over to you Bilal. You can थोड़ा सा और आप अपना introduction दे दें if you want, and then you can go ahead with your. Sure. First of all, thank you, Dr. Kamran, for inviting me in this class. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are all are having a great day and a morning. So this is Bilal. This is Bilal Shuaib, and by academics, I'm an engineer, and later on I completed my MBA from IBA, and I started my career with Mondelez International as a management trainee in 2014. Worked there for around 2 years and been associated with different assignments. Later on, moved to Abu Dhabi, Pakistan, where I also served 2 years, and then moved to Roche Pakistan Limited, and currently looking after the access and marketing function here recently. Before coming to the marketing side, I was associated with the distribution management, looking after the Pakistan and Afghanistan market for Roche Diagnostics division. So this is a brief introduction about me. Yeah, as Dr. You are Kamran a already senior mentioned, manager now, right? yeah, I'm a senior manager now. So as Dr. Kamran mentioned it, I was also a student of Dr. Kamran in the same class, operations, operations and production management, OPM. So you guys are in the right class and with the right instructor, right facilitator. He will definitely be adding value to your knowledge bank. Uh, that I can assure you. So, Thank you, Bilal. Humbled. sir, pleasure is all mine. So, in case you guys have any questions in your mind at the start, you want me to talk about, so please go ahead. Otherwise, I'll be sharing my experience because uh, you guys know much better than me about the theories, and everything is written in the books and the cases you have been went through in your classes. So I may not be having any case of book or maybe the formulas or the calculations and the concepts, but I'll be sharing the practical experience because that's what really matters in the business world, in the corporate world, what you will deliver, right? So if you have any questions in your mind you want me to talk about, just let me know. Otherwise, I'll be sharing what I have done so far in past 6 years. I think they're fine. You can go ahead. Okay, okay, I'm going here. Thank you. So प्रैक्टिकल आप में से कुछ लोगों ने जॉब की है ऑलरेडी या कोई इंटर्नशिप्स वगैरह, या सब लोग अभी बिल्कुल जो है वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास का मिक्स अगर मुझे पता चल जाए प्लीज क्विकली. No, we are doing, some of us are doing jobs too. Okay. And in a function of supply chain or else? Marketing mainly. Okay. So marketing and supply chain mix together at some point, right? अगर एक जो है वो मार्केटिंग किए जा रहा है, दूसरा प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पा रहा है या अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक मसला हो जाता है. तो आई थिंक आप भी रिलेट कर सकते हैं. अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट भी इस क्लास में है तो वो रिलेट कर सकेंगे कुछ चीज़ों को. सो लेट मी शेयर एन एग्जांपल ऑफ रिटेल इंडस्ट्री, जो कि आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के नाम से हम सब जानते हैं. आई हैड एन एक्सपीरियंस विद P&G प्रोडक्ट्स, जहाँ पे अबू धाबी पाकिस्तान में मैं था, और वहाँ पे मेरे कुछ चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको बेसिकली सॉल्व करना होता है. Before starting the example, let me tell you one thing. जॉब करना is very easy. अगर आप लोग कहते हैं कि नौकरी करनी है तो नौकरी करना बहुत आसान है. बट अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार कुछ करना है,
कुछ डिफरेंट करना है ताकि आप लोग की एक आइडेंटिटी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो और आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में से भी आप होते हुए जा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और कुछ डिलीवरी करनी पड़ती है आपको इस तरह की चीज़ों की जिसमें वाकई ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज करती हैं कि हाँ यार, इसको अगर रखा था तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, सिर्फ नौकरी नहीं की। नौकरी करना इज वेरी इजी, आप आराम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें, जॉब करते जाएं, टाइम आएगा प्रमोशन भी हो जाएगा 5 साल में, 4 साल में, और आप ऊपर हो जाएंगे, बट मजा नहीं आएगा आपको। तो उस मजे के लिए जरूरी है कि कुछ नया करते जाएं, कुछ इनोवेटिव करते जाएं, ताकि आप इंजॉय कर रहे हो अपनी जॉब को। अच्छा, चैलेंज ये था हमारे पास जो मैंने फेस किया, मैंने जब भी कोई चैलेंज फेस किया तो उसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उस पर डिफरेंट जो कुछ सीखा, आईबीए में सीखा, एनईडी में सीखा, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए कोशिश की कि उनको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से किस तरह हल किया जा सकता है। आप रिटेल का अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूं तो ये होता है कि सुबह में जो ऑर्डर बुकर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा शॉप टू शॉप जाते हैं और कस्टमर्स के ऑर्डर्स को बुक करते हैं। उसके बाद वो ऑर्डर सिस्टम्स में जो है वो पंच होते हैं, सिस्टम में पंच होने के बाद जो एक वेयर हाउसिंग का प्रोसेस है जिसमें उसकी पिक लिस्ट निकलती है, देन वो स्टॉक पिक होता है, वो पैक होता है, एंड देन वो ट्रेड वैन्स में डाल के डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, उसमें से हम सबको पता है, हम सबने पढ़ा भी है कि सारी 100% एग्जीक्यूशन डिलीवरीज की नहीं होती, हमेशा उसमें रिटर्न्स होते हैं। अब चैलेंज ये था कि स्टॉक जा रहा है और शाम में जब ट्रेड वैन्स वापस आ रही हैं तो रिटर्न्स आ रहे हैं। उस रिटर्न्स को लेने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है हर कंपनी का डिफरेंट, है वो किस तरह लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक प्रोसेस था कि इस तरह से उसको रिटर्न को लेना है। वो रिटर्न लेते थे, रिटर्न लेने के बाद उस रिटर्न की दोबारा से की जाती थी प्लेसमेंट वापस वेयर हाउस में। ठीक है, सामान फ्लो में प्लीज रहिएगा, अगर कोई कहीं मिस कर जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इट्स अ स्टोरी। तो अगर कोई आप मिस कर जाएंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली हुआ क्या था। सामान सुबह चला गया, शाम में वापस आया, उसमें रिटर्न शामिल हैं। रिटर्न्स वेयर हाउस में आए, वापस वेयर हाउस की टीम उसकी प्लेसमेंट करती है रैक्स में एंड शेल्व्स में, और नेक्स्ट डे दोबारा से जो अगले दिन के ऑर्डर्स हैं उसकी पिकिंग होती है, तो दोबारा से उसी सामान को पिक किया जाता है और अगले दिन के डिस्पैच के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो अब लोग जो ऑपरेशंस को करते आ रहे थे वो 15 साल से 20 साल से वो ऑपरेशन ऐसे ही चल रहा है कि रिटर्न आ रहा है, मिक्स हो रहा है, अगले दिन दोबारा पैकिंग के लिए डिस्पैच हो रहा है। तो उसमें डुप्लीकेशन हो रही है एफर्ट्स की, उसमें काम की डुप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, सप्लाई चेन में हम कहते हैं कि आपने एफिशिएंसीज को सर्च करना है, वैसे तो हर फंक्शन में ही कहा जाता है कि आपने एफिशिएंसीज को देखना है, आपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को देखना है, आपने कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन को देखना है, आपने रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन को देखना है। बट जैसे मैंने कहा ना कि नौकरी करना बहुत आसान है, आप हो रहा है एक काम, आप होने देते, आप चलने दें उसको, आप कोई चेंज ना करें। बट जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यार ये एक वेस्टेज है सिस्टम के अंदर, जो बिला वजह के अंदर एक चीज पिक हो रही है और मल्टीपल टाइम्स पिक हो रही है और पैक हो रही है, और ये बेसिकली एक कॉस्ट इनकर करती हैं जो कि शायद हम वेस्ट कर रहे हैं कंपनी का। तो उसमें हमने थोड़ा सा स्टडी किया उसको कि पॉसिबिलिटीज क्या है। आप लोगों को ईआरपी सिस्टम्स का पता होगा, एक बहुत ही कॉमनली यूज जो ईआरपी है वो एसएपी है, और इसी तरह से ओरेकल्स एंड अदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो अब अवेलेबल हैं, बट हमारे पास एसएपी था। तो हमने ये देखा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो स्टॉक एक बार पिक हो जाता है वो बस एक ही बार वेयर हाउस में से पिक हो जाए, बजाय इसके कि वो बार बार पिक हो रहा हो और अंदर जा रहा हो, फिर वापस आ रहा हो, फिर रिटर्न अंदर जा रहा हो। तो उसको स्टडी करने के बाद हमने उसमें ये चीज निकाली सैप सिस्टम के थ्रू कि हम एक रिटर्न की शीट बनाएंगे कि जो भी रिटर्न आ रहा है उसकी एक कंसोलिडेटेड समरी, एक डॉक्यूमेंट बनेगा, और उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये टोटल रिटर्न ही आ गया, बट वो प्लेसमेंट नहीं होगा वापस वेयर हाउस में। अच्छा, नेक्स्ट डे की जो ऑर्डर पिकिंग होगी टोटल, उस पिकिंग में से हम उस रिटर्न, वो वाले प्रोडक्ट्स जो रिटर्न में थे लास्ट डे के, सिस्टम ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो उसमें से ऑटोमेटिकली उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा कि भाई ये सामान ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, इसको आप अंदर से पिक नहीं करेंगे। और जब बाहर सारा सामान पिक होके आ जाएगा तो उसमें से स्टॉक को लेके नेक्स्ट ऑर्डर्स में डाल दिया जाएगा।
तो इससे हुआ क्या? अच्छा, ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है कि आपने जो है वो रिटर्न था सिंपल सा, आपने से उसको कह दिया कि भाई अंदर नहीं लेके जाओ। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको अपने सिस्टम को डिजाइन इस तरह करना होता है कि आपकी इन्वेंट्री की एक्यूरेसी भी खराब ना हो। हम सब ने पढ़ा होगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड एक्यूरेसी, IRA एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कि जो आइटम है वही होना चाहिए। अगर कोई भी SKU जो है वो वही SKU होना चाहिए, वही कस्टमर को जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा तो हम अपनी कस्टमर सर्विस को खराब कर लेंगे। अगर हमने सिस्टम को डिजाइन कर किया और उसकी वैलिडेशन ठीक से नहीं हुई, तो होगा क्या कि नेक्स्ट डे जब ऑर्डर्स की डिस्पैच हो रही होगी, तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्टॉक या कम स्टॉक अपने वेयर हाउस से आउट कर दें, और उसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक प्राइस है जो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। तो वो सारी स्टेप बाय स्टेप आप जो जो काम करते जाते हैं उसको आपको वैलिडेट करना होता है। उसको आप वैलिडेशन में लेके जाते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं। एंड देन जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये सिस्टम अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो उसको डिप्लॉय किया जाता है। कोई भी सिस्टम फौरी तौर पे बस मेरे ध्यान में आया बस कल से ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होता है कि हमें उसको वैलिडेट करना होता है, डिजाइन के बाद वैलिडेट करना होता है, देन उसको डिप्लॉय करना होता है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को करने से फायदे क्या हुए? इस प्रोजेक्ट को करने से फायदे ये हुए कि वो टाइम जो हमारे जो वेयर हाउस में लोग काम करते हैं उनको हम पिकर्स, जो वेयर हाउस की पिकिंग करते हैं उनको पिकर्स एंड पैकर्स कहते हैं, वो टाइम जो उस पिकर एंड पैकर्स की टीम को लगता था उस स्टॉक की वापस प्लेसमेंट का और नेक्स्ट डे की ऑर्डर में दोबारा से पिक करने का, हमने वो सारा टाइम सेव कर दिया। एंड इफ आई कैन कोट इट हियर, वो जो टाइम था वो इतना था कि वी हैव सेव्ड 2 full time employees resources from this minor change, and these 2 full-time resources cost us 100,000 rupees per month, because cost to company जो होता है वो अराउंड मिनिमम भी किसी एम्प्लॉय का होता है तो 50,000 होता है। तो 1 लाख रुपए पर पर्सन, सॉरी 1 लाख रुपए पर वेयर हाउस हमने उसको सेव किया, जो कि अगर आप एनुअली इसको देखें तो 1.2 million, and we were operating with 10 big warehouses in Pakistan. So the savings were 12 million per annum, which is huge. And we have done nothing but just a minor change in the processing and in the systems designing. थोड़ा सा चेंज करने से हमने 12 मिलियन जो है वो कंपनी के सेव कर दिए, जो कि जाया हो रहे थे, और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। अच्छा, जब आप इस तरह का कोई चेंज करने जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। लाइक आपको चेंज मैनेजमेंट पता होना चाहिए। आपको चेंज मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू मस्ट नो चेंज मैनेजमेंट। इट्स नॉट दैट इजी। जितने आसानी से मैं सुना रहा हूँ ना, इतने आसानी से हुआ नहीं था। बहुत सारे मसले आ जाते हैं। मसले ये आ जाएंगे कि पीपल वोंट ट्रस्ट यू। वो कहेंगे कि नहीं यार, आप जो कह रहे हैं ना ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो ये हो जाएगा, उसमें उसमें आपको सारे नेगेटिव साइड सिखाए जाएंगे कि नहीं इसमें यूं हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये नुकसान हो जाएगा, इसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, इसमें फाइनेंशियल लॉस हो जाएंगे। तो आपको सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंस जो है वो अपनी लेके आ जाएगा कि नहीं इसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड खराब हो जाएंगे, बुक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सेल्स अपनी ले आएगा कि नहीं कस्टमर्स को गलत डिस्पैचेस हो जाएंगे, कस्टमर जो सर्विस है वो खराब हो जाएगी अगर किसी को रॉन्ग प्रोडक्ट चले जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसले होंगे, एंड यू एज अ प्रोजेक्ट लीड हैव टू क्लियर देम आउट इंडिविजुअली। आपको हर किसी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। आपको उन सबको जो है ना वो कन्विंस करना है अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर कि नो, इससे कुछ भी नहीं होगा, आपका कस्टमर सर्विस भी रहेगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी खराब नहीं होंगे, इन्वेंट्री की एक्यूरेसी भी खराब नहीं होगी, एंड हम इसको कर लेंगे। तो आपको वो हैंडलिंग भी करनी होती है। एक तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से आप कहेंगे कि यार ये भी करो, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू विल नेवर सक्सीड। आप नहीं सक्सीड कर सकते अनलेस कि आपकी अपनी कंपनी हो जिसमें आप वन मैन शो हो कि बस मैंने कह दिया कल से ये होगा तो वो होगा। बट इन ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वहाँ पे हायरार्कीज एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, तो उसको लेके साथ चलना आपको सीखना होगा। अच्छा, इसके एक फायदा तो ये हुआ जो मैंने आपको बताया इन द मॉनेटरी टर्म्स एंड इन द एब्सोल्यूट वैल्यूज, और ये जो सारी 2 फुल टाइम एम्प्लॉयज हमने कम किए। अच्छा, अब
उससे और फायदे ये हुए कि जो रिटर्न्स आता है, यूजुअली हमें सबको पता है कि जो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है उसकी जितनी ज्यादा हैंडलिंग होती है वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा डैमेज होने का रिस्क होता है। लाइक अगर कोई शैम्पू की बॉटल है या कोई सर्फ का पैकेट है, कोई कार्टन है, आप उसकी जितनी मर्तबा हैंडलिंग करते हैं वो उतना ज्यादा डिटोरिएशन हो रहा होता है पैकेजिंग का। और पैकेजिंग अगर डिटोरिएट हो जाती है और ब्रांड का जो लोगो है या जो उस पर इंफॉर्मेशन है अगर वो विजिबल नहीं रहती तो इट्स नॉट सेलेबल, उसको आपको स्क्रैप करना पड़ जाता है, वो सेलेबल नहीं होता। और इसी तरह जो पाउचेज होते हैं, फॉर एग्जांपल एरियल का पाउच है, सर्फ एक्सेल का पाउच है, इस तरह की जो चीजें हैं, इसी तरह सोप्स आते हैं, उनकी जो पैकेजिंग अगर आपके हैंडलिंग में आपके हाथ से छूट जाता है तो वो पैक फट जाता है और वो गया तो आप उसको स्क्रैप करेंगे, अब आप उसको सेल नहीं कर सकते, राइट। तो हमने जो दूसरी एनालिसिस की वो हमने ये की कि जब हमने ये रिटर्न्स को अ, खत्म किया वापस प्लेसमेंट से, तो इसकी हैंडलिंग भी मिनिमाइज हो गई। और जब हैंडलिंग मिनिमाइज हुई तो उससे फायदा ये हुआ कि हमारे डैमेजेस भी कम हो गए। तो वो डैमेजेस जो हम मिलियंस ऑफ रुपीस के एनुअली हम स्क्रैप कर रहे होते थे, वो मिलियंस ऑफ रुपीस से कम होके वो लाखों में आ गए। तो ये एक सेकंड एडवांटेज था जो कि एक समझे कि बाय प्रोडक्ट था उस प्रोजेक्ट का, जो कि शायद इनिशियल में हमने उसको नहीं देखा था कि ये भी होगा। बट जब वो कम होना शुरू हुए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तब हमने सोचा कि यार ऐसा क्या हुआ है। तो समझ में ये आया कि क्योंकि प्रोडक्ट की हैंडलिंग हमने कम कर दी तो उसकी वजह से हमारे डैमेजेस भी जो है वो कम होने शुरू हो गए। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशंस में हम ये सोचते हैं कि यार मल्टीनेशनल में जाना है या वहाँ पे जॉब करेंगे तो पता नहीं कोई बहुत ही कोई क्रेजी वो होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। बट टू स्टार्ट विद अगर हम बहुत छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करना शुरू करें, फोकस करना शुरू करें, तो हम वहां से ही बहुत सारी वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और शुरू में जब हम कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं, हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो कुछ सेशंस में वो कहते हैं कि यार नहीं, हमारे पास तो इतना जबरदस्त आइडिया है, और हम जाते हैं कंपनी में जाके पिच करते हैं, अपने लाइन मैनेजर को कहते हैं, अपने डिपार्टमेंट हेड को कहते हैं कि भाई ये कर लेते हैं, इसमें इतने पैसे लगेंगे, ये होगा। तो वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, यू आर टू स्मॉल टू डू सच प्रोजेक्ट्स, और आप जो है ना वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हो कि आपको आपकी बात पे या आपके प्रोजेक्ट पे इतने पैसे लगा दिए जाएं। और अगर मैं सही बताऊं तो शायद वो ठीक भी होते हैं, क्योंकि जब आप भी उस लेवल पे पहुंचेंगे और आपके पास भी कोई एक नया ग्रेजुएट आता है जिसको अभी 6 महीने हुए हैं या वो हुए हैं, और वो आपसे आके कहता है कि जी मुझे 5 मिलियन दे दें बस, फिर आप देखें क्या होता है। तो आप भी सोचेंगे कि यार 5 मिलियन, 50 लाख रुपए मैं इसको दे दूं, और नहीं हुआ तो क्या होगा, तो गए 50 लाख रुपए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस जितनी ज्यादा मेच्योर होती है ना, उतनी ज्यादा अ, वो रिस्क अवर्स होती हैं, ये याद रखिएगा। जितनी मल्टीनेशनल्स हैं बड़ी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हैं, उनकी कंटिन्यूस एक रेवेन्यू ऑफ स्ट्रीम जो है ना उनकी बड़ी कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। उनको पता होता है इतना मार्जिन बनी बनी बन रहा है और हमें कोई मसला नहीं है। तो वो कभी भी आपके इस तरह के आइडियाज को बाय नहीं करते। और यही प्रॉब्लम आता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं कि यार छोड़ो यार, इस दुनिया में तो जो है ना वो सब ऐसे ही। तो मेरी रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट्स को ये होती है कि जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो, आप उनसे कुछ मांगे ना, उससे पहले कोशिश करें कि आप कुछ दे दें। और जब आप कुछ उनको दिखा देंगे ना, कुछ करके दिखा देंगे विद विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ओनली, तो फिर उनका एक होगा कि कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आएगा, फिर उन आपके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप होगा मैनेजमेंट टीम का, और फिर जब आप कोई बात करेंगे या आप कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करेंगे, वो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको पैसा भी देंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी देंगे, और फिर आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। बट अगर आप स्ट्रेट अवे जाके 3 महीने बाद एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया, 3 महीने बाद जाके जी 50 लाख रुपए का आइडिया आ गया दे दें, और बस कल से मैं काम शुरू कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, तो ट्रस्ट मी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी 50 लाख रुपए आपको। तो आप लिमिटेड उसी अवेलेबल रिसोर्सेज में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से प्रोजेक्ट शुरू करें और आप उसको लेके जाएं। इसी तरह से ये एक जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट के, बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ रिटर्न्स की मैनेजमेंट को लेके हमने इतने सारे जो है ना वो बेनिफिट्स कंपनी को दे दिए, और बहुत ही सिंपल सा काम करके उसके बाद मैंने जो है वो ऐसे भी प्रोजेक्ट सजेस्ट किए जिसमें इन्वेस्टमेंट्स थी, और
25-25, 30-30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी थी, जो कंपनी ने, जब मैंने उनको जाके प्रपोज किया और प्रेजेंट किया अपने आइडिया को कि यार ये इस तरह करने से कि हमें फायदा, डेट्स रिलेटेड टू द फ्लीट मैनेजमेंट, तो कंपनी ने उसके ऊपर वाकई गौर भी किया, फिर फाइनेंशियल उसके एनालिसिस भी हुए, सब कुछ हुआ, और उसके बाद कंपनी ने उस पर इन्वेस्ट भी किया और वो प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं अच्छे। बट बट आप लोग के साथ, क्योंकि जाहिर है अभी आप लोग नए जाएंगे, या जो लोग थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर्स में इस हवाले से कि यार सप्लाई चेन में है या मार्केटिंग में है या कहीं भी है, और फंडिंग नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा कि कुछ कर सकें, तो पहले बगैर ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करें जो बगैर पैसे के हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक चीज होती है रिटेल के हवाले से ही। अच्छा, आई एम सॉरी, बट मैं वो जो है ना, टेक्निकल जो चीजें, मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि वो डॉक्टर कामरान मुझसे बहुत अच्छी जानते हैं और उन्होंने आपको डेफिनेटली पढ़ाया भी होगा। लाइक वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में EOQ होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कर लेते हैं, आप ABC एनालिसिस करते हैं, आप JIT मॉडलिंग करते हैं, आप फैक्टर रेटिंग मेथड अप्लाई करते हैं, आप ग्रेविटी मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। नेट इसी तरह कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं कि आपका जो वेयर हाउसेज है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग साइट है, आपके कस्टमर का बेस है वो कहाँ पे है, उसके हिसाब से वो नेटवर्क प्लानिंग एक चीज होती है। इसी तरह से आप जब कोई किसी जगह पे आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा होता है तो आपको जरूरत पड़ती है वेयर हाउस प्लानिंग की, कि आप उसके लिए साइट प्लान करते हैं पूरी, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। एंड देन इन in the food and pharmaceutical industry, they are called terms as cold chain management. तो cold chain management is a bit different from conventional supply chain management, क्योंकि supply chain management में usually आप टेम्परेचर को फोकस में नहीं ला रहे होते हैं और बस आप अपनी प्रोडक्ट के फ्लो को सिर्फ देख रहे होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कोल्ड चेन मैनेजमेंट, उसके अंदर हर स्टेज पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक प्रोडक्ट स्टोर होगी तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है कि उस जिस जगह स्टोर हो रही है वहाँ पे टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए, उस टेम्परेचर की 24/7 मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उसके अलार्म सिस्टम्स किस तरह से काम करने चाहिए, उसके नोटिफिकेशंस किस तरह जनरेट होंगे, आप किस तरह कॉन्फिडेंट होंगे कि अगर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कोल्ड चेन मैनेजमेंट का जो चैलेंज है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, कि आपने वेयर हाउस बना लिया, चिलर्स लग गए, सब कुछ हो गया, अब लाइट चली जाती है, तो आपके पास उसका, आप एक जब कोल्ड चेन मैनेजमेंट करते हैं तो आप बैकअप प्लानिंग करते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान बनाते हैं, तो उसमें आप फिर उसके लिए जनरेटर्स प्लेस करते हैं। अच्छा, कोल्ड चेन में क्योंकि स्पेसिफिकली इन वैक्सीन एंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो वेरी यूनिक, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक वेयर हाउस है ना, तो वो अगर उसका टेम्परेचर एक्सकर्ट कर जाए तो वो सारी प्रोडक्ट जो है वो क्वारंटाइन हो जाएगी टिल द टाइम R&D टीम जो है वो उसको क्लियर करे, उसकी स्टडी करने के बाद कि हाँ ये वो है। तो उससे क्या होगा कि आगे जो पेशेंट्स हैं जिनको वो वैक्सीन या वो प्रोडक्ट जिन पे कंज्यूम होनी थी, वो सफर करेंगे उसकी वजह से। और हमारे यहाँ इस तरह की चीजें पाकिस्तान में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी इम्पोर्ट्स, कि हम जर्मनी को ऑर्डर देंगे, हम US को ऑर्डर देते हैं, तो वो वहां से हमें सप्लाई करते हैं। उसका जो लीड टाइम है वो 3 वीक्स का टाइम होता है। तो हमें जो है, जो यहाँ पर हम अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज और ये सब चीजें बनाते हैं, हम उसमें 100% श्योरिटी के साथ बनाते हैं कि यार अगर कोई भी फेलियर हो जाए ना तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा, ऑल्दो वो जो एरिया है वो आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, बट आपको फैसिलिटीज मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। अगर आप अपना कैरियर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बनाने का सोचते हैं तो आपको फैसिलिटीज मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, कि कितना एरिया है तो कितने चिलर्स लगेंगे, चिलर्स फेल होंगे तो बैकअप जनरेटर होगा, अगर जनरेटर ने काम नहीं किया तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा। इसी तरह हम ये भी करते हैं अपनी कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए और सारे रिस्क को हम अवॉइड करने के लिए, कि उसमें हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ करके रखते हैं कोल्ड चेन कंपनीज के साथ। एंड उसमें होता यह है कि आपने एक वेयर हाउस सेटअप किया, वेयर हाउस सेटअप करने के बाद आपने उसका एक बैकअप जनरेटर लगा दिया, वो फेल हो जाएगा तो उसके साथ एक और बैकअप जनरेटर आपने लगा दी। बट कितने बैकअप जनरेटर्स लगाएंगे, 2 ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा तो फिर वो उसकी जो लैंड की कॉस्ट है वो इतनी पड़ जाएगी आपको कि आप कहेंगे फिर जनरेटर्स ही लगाते जाएं। तो हम लोग ये करते हैं कि हम एटलीस्ट 2 बैकअप्स लगाते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी के जो के इलेक्ट्रिक से आ रही है, देन उसका बैकअप, एंड थर्ड उसका एक और बैकअप। फोर्थ ऑप्शन पे हम ये रखते हैं कि जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल TCS है, फॉर DHL है, इस तरह के जो कोल्ड चेन सॉल्यूशंस देते हैं, उनके साथ हम एक ना एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं
कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमारे ये सारी चीजें फेल हो जाएंगे तो हमें आपसे रीफर चाहिए होगा। यानी कि रीफर इज अ टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक को कहते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से जो है वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं उस कंटेनर का। वो रेंट पे ही कंपनीज देती हैं। तो हम एक एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ कि अगर कल को कोई फेलियर हमारा ये इस तरह का हो जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और इतने घंटे के अंदर आप हमें वहां पे ट्रक्स पहुंचाएंगे, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को जल्दी से शिफ्ट करके उसके अंदर रखें, ताकि प्रोडक्ट लॉस कोई ना हो। तो ये इस तरह की कॉन्टीजेंसी प्लानिंग है जो आपको सप्लाई चेन के अंदर करनी होती है। और आपको एक सप्लाई चेन मैनेजर को ना बहुत सारी चीजें पैरेलल में देखनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी देखनी होती है, फैसिलिटीज की भी देखनी होती है, ट्रकिंग की भी देखनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी देखनी होती है। और फिर जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गए, आपके फाइनेंस हो गए, सबके साथ ही आपको तकरीबन इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आपकी लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है और आप जो है वो इन सब की जबान भी सीख जाते हैं कि किससे किस लैंग्वेज में बात करनी है, किसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग भी होती है क्योंकि आपका इंटरेक्शन मोर और लेस सबके साथ ही हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और है जो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट थोड़ा सा बता दूं। एक सेफ्टी स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट है जिसपे बहुत ज्यादा ना वो रहती है, कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि यार सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक जो है ना वो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ऑल्दो वो बुक्स में कुछ होता है कि ये इतना रख दें इतना रख दें, बट इट्स नॉट अ फिक्स्ड थिंग। ये कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हर इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से वेरी करता है कि आपको कितना रखना है। और इसको हम देखते हैं इन कंपैरिजन टू अदर अदर पैरामीटर्स। लाइक फॉर एग्जांपल मेनली जो देखा जाता है वही देखा जाता है कि क्या हमारी सेफ्टी स्टॉक रखने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, या हमारी जो कस्टमर सर्विस खराब होगी, यानी कि जब प्रोडक्ट अनअवेलेबल हो जाएगी तो जो डैमेज होगा कस्टमर सर्विस ना देने का, वो ज्यादा होगा। तो इट्स अ स्ट्रेटेजिक थिंग जो कि कंपनी बहुत ज्यादा सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मिलके इस बात को डिसाइड करते हैं कि हमें कितना सेफ्टी स्टॉक प्लान करने की जरूरत है अपनी इन्वेंट्री के अंदर। So these are few things related to inventory. टेक्निकलिटीज और फॉर्मूला कैलकुलेशन वो आप लोगों के पास होगा, वो जस्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से इन मॉडलिंग को यूज कर रही होती है। अच्छा, अब क्योंकि बहुत ज्यादा पहले किसी टाइम पे शायद मैनुअल कैलकुलेशंस और ये सब होता था, अब ये सारी चीजें ना सॉफ्टवेयर्स में आ गई हैं। सब चीजें ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हैं कंपनीज के पास अवेलेबल हैं। उसके अंदर सिर्फ हम अपना जो रिक्वायरमेंट्स है उनको डिजाइन करते हैं और उनको अपलोड कर दिया जाता है एक बार प्रोग्राम के अंदर, और उससे वो कैलकुलेट करते हैं एल्गोरिथम्स को डिफरेंट, और उसी बेसिस पे पूरा जो बिजनेस है ना वो कमर्शियल ऑपरेशन पूरा उसी बेसिस पे चल रहा होता है। तो आपको फंडामेंटल्स पता होने जरूरी है, बट नॉट नेसेसरी कि आपको ना वो एग्जैक्टली वो पता हो कि कौन सी चीज प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है, कौन सी डिवाइड करनी है। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या है, किन चीजों को कंसिडरेशन देनी है, और बाकी जो उसकी कैलकुलेशन का काम है सारा वो आपके लिए वो सॉफ्टवेयर करेगा। अच्छा, इसी तरह से जो एक एग्जांपल आपको मैंने दी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। व्हीकल लोड मैनेजमेंट के हवाले से हमने एक प्रोजेक्ट किया था। होता ये रिटेल ऑपरेशंस में, अगर आप लोगों ने कभी देखा है, नहीं देखा तो आप लोग इन फ्यूचर देख लेंगे। ये सबने देखा होगा कि डिफरेंट सुबह के टाइम पे डिफरेंट ट्रक्स या जो शेजोर या सुजुकी वैन्स होती हैं वो निकली होती हैं। उसके अंदर आगे एक ड्राइवर, एक बंदा बैठा होता है, वो शॉप टू शॉप जाते हैं, सामान देते हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली। अच्छा, उसमें एक कंपनी का एक जगह पे ना और लॉस हो रहा होता है, क्योंकि ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि सेल्स सिंड्रोम एक चीज होती है, जो कि ये होता है कि पूरे महीने सेल्स जो है ना वो नहीं होती, और आखिरी 29, 28, 29, 30 तारीख को 3 दिन में जो है ना वो सारे ऑर्डर्स एक साथ आ जाते हैं कस्टमर की तरफ से कि भाई ये भी दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और वो टारगेट्स नहीं हो रहे होते तो वो पुश सेल्स भी बहुत ज्यादा हो रही होती है कि बस ये सामान डालो और ये कस्टमर का ऑर्डर है और पहुंचाओ। अब उसके लिए मतलब इसको एग्जाम्पल अगर हम क्वांटिफाई करने के मैं दूं तो इस तरह है कि डेली आपके पास सेल आती है 1 करोड़ रुपए की, कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है 1 करोड़ रुपए की मार्केट में। अचानक से 28, 29, 30 तारीख को आपके पास पर डे सेल आ गई 6 करोड़ रुपए की। आप क्या करेंगे? आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जो रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं,
जो फ्लीट एग्जिस्ट करता है वो है उस फिक्स्ड या एक जो मीन आपकी डिमांड होती है ना, उसके हिसाब से आप प्लान करते हैं अपने रिसोर्सेज को कि जी 1 करोड़ रुपए पर डे मुझे हैंडल करना है। अब उस 6 करोड़ रुपए को आप कैसे हैंडल करेंगे? सो दिस इज अ रियल चैलेंज कि ना वहाँ कैलकुलेशन काम आती है, ना वहाँ पे कोई चीज, क्योंकि अब ऑर्डर आ गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन ऑपरेशन या एज अ सप्लाई चेन गाय के वो सारा काम होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अपने वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं डिफरेंट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, कि आप जो है ना मुझे, अच्छा आखिरी दिनों में अगर आप वैसे ही किसी से, जो 3 दिन होते हैं ना, आपको मार्केट में गाड़ी नहीं मिलती और गाड़ियों के रेट्स भी डबल हो जाते हैं। शुरू में ये होता था कि हम रेंट पे गाड़ी मंगाते थे, अब वो ट्रक जो फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल डेज में 4,000 रुपए का पड़ता था, वो उस दिन मांगते थे 10,000 रुपए, क्योंकि उनको पता होता था कि इस वक्त इनकी ये फंसे हुए हैं और ये जितने पैसे देंगे ना, मतलब जो भी हम मांगेंगे हमें मिलेगा, और ये नहीं देंगे तो कोई और देगा, कोई और कंपनी देगी। तो जो खान नेटवर्क एक हमारे यहाँ जो मेनली पठान ऑपरेट करते हैं, तो दे आर स्मार्ट, वो करते थे कि नहीं यार ये इतने पैसे में देंगे। तो उसका हल ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर लें। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स में फायदा ये होता है कि वो बाउंड होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है या जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर होता है वो बाउंड होता है, और आप उसके साथ ना पूरे एनुअल रेट्स फिक्स कर देते हैं कि जी मुझे जब भी गाड़ी चाहिए होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ये कि कुछ अच्छे भी आपको मिल जाते हैं मार्केट में लोग, तो उनके साथ जब आप इसको करते हैं, अच्छा फिर उनके साथ उनको फायदा ये होता है कि उनको ये कंफर्म होता है कि उनका ये वाला जो सेल्स है ये हर मंथ रहेगी, वो भी इस बात पे श्योर होते हैं। अदरवाइज अगर वो एग्रीमेंट में वो नहीं होते तो उनको नहीं पता होता कि किस दिन वो रेंट पे जाएंगे और किस दिन नहीं जाएंगे। तो आप उनको अपनी तरफ से ये दे रहे होते हैं कि यार मेरी श्योरिटी है कि मेरे पास जो गाड़ी है ना वो आपके अलावा कहीं और से नहीं आएगी। तो वो रिलैक्स होते हैं कि यार इसके पास जब भी जरूरत आनी है तो मुझे मुझे ही कॉल आनी है और मैं ही गाड़ी में दूंगा। इसी तरह से दूसरे साइट पे अगर आप जाएं रेंट पे, तो उसमें आपके पैसे, दूसरी कंपनी साइट पे अगर आप जाएं तो आपके पैसे सेव हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो एज अ सप्लाई चेन पर्सन जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इसको सामने रखने की ज़रूरत है कि आप लॉन्ग टर्म में किस तरह एग्रीमेंट्स में जा सकते हैं जिसमें कंपनी का भी फायदा हो जाए और जो सामने वाली पार्टी है उसका भी फायदा हो जाए। अच्छा ये हो गया सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि मैंने बताया सेल्स सिंड्रोम होता है। अच्छा ये एफएमसीजीज में इट्स वेरी कॉमन, 28, 29, 30 को आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आने शुरू हो गए, जो कि पूरे पूरे महीने जो है ना वो ठंड होती है, पूरे महीने काम नहीं होता। तो एक ये चीज आपको हैंडल करना प्रोफेशनली जब आप जाते हैं इंशाल्लाह किसी भी इस तरह की कंपनी में और इस तरह के जॉब रोल पे, तो आपको हैंडलिंग करने में हेल्प कर सकती हैं इस तरह की चीजें। कोशिश करें कि जहां पर आप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं वो निकालें। टेम्पररी सॉल्यूशंस जो है ना वो काम नहीं करते। आप हो सकता है एक सिचुएशन आ गई, आपने कहा यार क्विक फिक्स कर दो, अभी कर दो, देखा जाएगा, ट्रस्ट में वो नहीं काम करते और उसमें आप हमेशा परेशान रहेंगे। अच्छा मैं सप्लाई चेन में अलग इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैंडल किए हैं, सब कुछ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ना उसमें नहीं आया। एक परेशानी में होता है ना बंदा के परेशान हो रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इसको फोन कर रहा है उसको फोन कर रहा है। तो मुझसे कुछ लोगों ने ये बात कहा भी कि यार सप्लाई चेन में यूजुअली ना एक ऑपरेशंस में आपने सुना होगा मारा मारी रहती है हर वक्त के, जी ये हो गया तो यूं हो गया, ये करना है वो करना है। तो लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम क्या मतलब तुम क्यों इतने मुतमईन रहते हो, लगता है या तो तुम काम नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जो ऑपरेशन हैं वो बड़े अच्छे मैनेज्ड भी रहते हैं तो कोई मसला भी नहीं होता। तो होता ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आए ना हमेशा उसको लेके बैठ जाए और उसकी पूरी असेसमेंट करें प्रॉपर और उसका ना सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालें। अगर आपने एक बार सोल्यूशन निकाल के काम चला दिया ना, तो आप हर बार परेशानी में रहेंगे और वो एक साइकिल है जो घूमता ही रहेगा। आप कभी भी उस साइकिल से निकल नहीं सकेंगे। मेरा मेरा तरीका काम करने का ये होता था कि यार एक प्रॉब्लम आ गया, लेट्स सेट, वो देखें कि किस किस तरह हल हो सकता है, और एक बार उसको हल कर दें, वो बार बार नहीं आना चाहिए मसला वो। तो उसके लिए आप एग्रीमेंट्स में जाना चाहते हैं, एग्रीमेंट्स में जाएं, कोई सिस्टम बनाना है सिस्टम बना दें, प्रोसेस बनाना है प्रोसेस बना लें, कुछ भी करना है। अच्छा आई कैन सी के आमना आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yeah, so basically, I can really relate to what you're saying right now because I've had a sales experience for 3 years in Philip Morris. So जो आप वो वाली बात कर रहे हैं ना कि पूरा महीना बिल्कुल ठंड रहती है और आखिरी के 3 दिन में ऐसे ऑर्डर आ रहे होते हैं कि समझ नहीं आता है कहाँ से आ रहे हैं. I've experienced that as well, but I've experienced it on the other side of
supply chain, as you would be saying. तो उसमें what I would say is that I think operations का वहाँ पे बहुत help तब होती है कि I think even operation side is also very well accustomed to the fact कि उनको भी पता होता है कि आखिरी के 3 दिन में क्या होने वाला है. So they have Exactly. their cars loaded because हमारे यहाँ ये होता था कि आपकी basically एक primary stock की shipment लगती है, right? और वो तब होती है जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने फॉर एग्जांपल पैसे दे दिए हैं, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपके पास फिर वो आना है. अब द होल डिफरेंस जो वहां पे आता है, हर कंपनी का एक कट ऑफ टाइम भी होता है कि इतने बजे जो ऑर्डर प्लेस हो गया है बस हो गया, 3 बजे के बाद कोई शिपमेंट नहीं हो सकती, सॉरी. और 3 बजे वाला टाइम वो होता है कि बैंक बोलते हैं भाई पैसे अब हम नहीं दे सकते, अब आपने जो करना है करें. सो यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड योर डिस्ट्रीब्यूटर कि भाई पैसे लगा दो, ऑर्डर प्लेस कर दो. दैट इज व्हाट्स हैपनिंग. तो उसमें आई हैव फेस्ड द सेम थिंग वेयर आई एम लाइक कि भाई 2 मिनट और दे दे मुझे सिस्टम के लिए, मैं बस अभी प्लेस करवा रही हूँ, आप बस ये भिजवा दे. बट दैट रियली हैपेंस, एंड स्पेशली इफ यू हैव लाइक अ वेरी स्पेशली न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एक दिन पहले आपने शिपमेंट लगाया बट सुबह अब गाड़ी नहीं आई है आपकी. So that really, I think it really helps when your operation system is also aligned with the sales system and they know कि किस तरह से चीजें चलनी है and they work well hand in hand. I think efficiency आपकी तभी आती है जब both of your departments are actually working in sync with each other. Exactly. It really exactly, Amna. Exactly. थैंक यू सो मच आमना फॉर सच अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन. और आपने जो कहा ना वो टाइमिंग कट ऑफ वाली बात, तो मैं उस पर भी एक दो एग्जांपल शेयर करूं कि हर कंपनी में ना वो एक एक्सेप्शन भी होती है. जरूर होती है, स्पेशली जो महीने का लास्ट हफ्ता होता है ना, उसमें तो वो एक्सेप्शन बहुत ही जरूरी होती है कि भाई आज एक्सेप्शन दे दे प्लीज. एग्जैक्टली, एक्सेप्शंस होती हैं और वो हर पॉलिसी में वो एक चीज लिखी जाती है. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगती है और हंसी भी आती है कि आपने सारे रूल सब कुछ बना दिया. वो जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि सब चीज करके आखिर में दे दिया जाता है कि प्रेसिडेंट वुड से तो आप ये कर सकते हैं. तो इसी तरह से वो कंपनी की पॉलिसीज में भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंट्री मैनेजर कह दे तो कर लें, अगर हेड ऑफ सेल्स कह दें तो हो जाएगा. आपके सेल्स डायरेक्टर ने अगर बोल दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस फिर दे दो, कोई बात नहीं. एग्जैक्टली. तो वो इस तरह के प्रोविजंस कंपनीज भी रखे जाते हैं बिकॉज अल्टीमेटली जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशंस का, दे ऑल आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. सो अगर वो बिजनेस ही नहीं करेंगे और वो सिर्फ अगर इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे अपने टाइमलाइंस पे और उन पे, तो शायद वो सक्सेस तो नहीं अचीव कर सकते जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं. तो कंपनीज कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर बनाते हैं अपने पॉलिसीज में, बट डेफिनेटली उसमें एक मार्जिन हमेशा एंड में रखा जाता है कि कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो अगर उसको इंडोर्स कर देती है उस डिमांड को, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना होता है. बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा होता है. इट्स वेरी कॉमन. अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आमना ने जो मेंशन किया, मैं उस पर थोड़ा सा बिल्ड करना चाहूंगा. आमना ने कहा कि it goes hand in hand, like it's not from the supply chain side only. ये sales and supply chain जो पूरा SD sales and distribution जो होता है ना, उनको दोनों को मिलकर चलना होता है. और इसका सबसे अच्छा तरीका, मुझसे कोई कहता है यार स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार देयर इज नॉट अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड स्ट्रैटेजी, राइट. ये हो नहीं सकता कि मैं आपको आज एक बता दूं 2 लाइन में लिख के कि यार सप्लाई चेन अगर आपको रन करना है या सेल्स आपको रन करना है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं होता. स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन के इन विच environment you are operating in which industry you are operating, with which you are operating. आपका कस्टमर क्या है, आपकी मार्केट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको देखते हुए जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अभी आमना ने मेंशन किया कि सेल्स और सप्लाई चेन गोज हैंड इन हैंड. तो अगर ये दो फंक्शंस अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते टाइम एक दूसरे के साथ अलाइन कर ले, तो आई थिंक बहुत ज्यादा पीसफुली काम हो सकता है. बट प्रॉब्लम सारे आते कहाँ हैं कि ना, सेल्स फंक्शन एक कमरे में बैठता है और अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है कि जी इस साल का हमारा ये टारगेट होगा, ये होगा, ये स्ट्रैटेजी ये है, चलो भाई सब लग जाओ काम पे. सप्लाई चेन वाले अपने एक कमरे में बैठे, उन्होंने साइलो में बैठ के अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली. अब वो दोनों ने बेहतरीन स्ट्रैटेजीज बनाई है, उसने सेल्स की अच्छी बनाई है, उसने सप्लाई चेन की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, बट एट सम पॉइंट इन टाइम दे बोथ विल फेल. क्योंकि सप्लाई चेन वाला सर पकड़ के बैठा होगा कि यार मैंने तो जो स्ट्रेटेजाइज किया था वो ये किया था, अब ये आ गया. सेल्स वाला कहेगा यार मैंने तो इतना वॉल्यूम प्लान किया था, ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, ये इसको डिलीवरेबल्स इनसे नहीं हो पा रहे सब मेरे तो प्रोडक्ट्स. तो द बेस्ट थिंग इज कि जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं
आप अलाइंड स्ट्रेटेजी बनाएं। द ओनली बेस्ट स्ट्रेटेजी इज विच इज अलाइंड विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप खुद से अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाते हैं वो किसी काम की नहीं होगी अनलेस अदरवाइज इट इज अलाइंड विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अगर वो अलाइन नहीं है उस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ तो नो मैटर आप कितनी ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी लेके आ जाएं, अल्टीमेटली यू विल फेल। और आपको बहुत कुछ उस पर देखना पड़ेगा, आपको उस पर बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि जब हम साल के स्टार्ट में, जब बिजनेस ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम पे हम जब प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग का जो काम करते हैं उसमें डेवलप दी फंडामेंटल्स कि यार ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हम गोल सेट कर रहे हैं, ये हम हमारा एक्शन होगा। उसके बाद रोड मैप बनाने के बाद उस पर आप जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इंगेज करें, उनका बायन लें कि यार हम इस तरह करने जा रहे हैं, इज इट ओके टू गो विद। और आप समझते हैं कि नहीं, हमारा हम कहीं पर जो है वो कोई पार्ट मिस कर गए जो आप समझते हैं कि इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए, या आपके क्या टारगेट्स हैं, आप क्या ऑब्जेक्टिव्स चाह रहे हैं इस साल के। तो वो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अदरवाइज स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं लेकिन वो सब जो है ना सिर्फ प्रेजेंटेशंस में होती हैं और डॉक्यूमेंट पे होती हैं, और फिर लोग कह रहे होते हैं कि यार इतनी मेहनत की थी, पूरा 1 हफ्ता लगाया था स्ट्रेटेजी बनाने के ऊपर, और कोई काम नहीं आ रहा। तो बॉस भी अलग परेशान होता है, वो आपको भी परेशान करते हैं, और आपका भी इमेज खराब हो रहा होता है, डिपार्टमेंट का भी इमेज खराब हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अलाइन रखें अपनी स्ट्रेटेजी में। अच्छा, रिटेल के हवाले से एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। जब रिटेल ऑपरेशंस में होते हैं तो उसमें एक होता है व्हीकल लोड मैनेजमेंट के। मैंने जैसे कहा ना कि डेली की जो सेल्स हैं आपकी वो वेरी करती हैं कि कौन सी व्हीकल में, फॉर एग्जांपल एक राउट है जिस पर आपने लगा दिया शेजोर ट्रक लगा दिया, अब उसकी जो सेल्स है ना वो किसी दिन तो आ रही हैं फुल शेजोर लोड पे, किसी जिसको हम वो कहते हैं एफटीएल कहते हैं, फुल ट्रक लोड कहते हैं, या फिर वीएफआर बोलते हैं, वैन फिल रेट बोलते हैं, व्हीकल फिल रेट या वैन फिल रेट। उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। वो प्रैक्टिकली जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आप काम करेंगे उनके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उसको कैलकुलेट करने के वो आप करते हैं। अच्छा, उसमें भी वेरिएंस आता है कि वो पता चला किसी दिन तो 90% पे होगी, फिर किसी दिन वो अचानक से 55 पे आ जाएगी। वो डेली कैलकुलेट होता है कि किस व्हीकल का कितना फिल रेट रहा था। वो भी एक चैलेंज था। जब मैंने एज अ सप्लाई चेन वहाँ पे काम स्टार्ट किया था तो हमने उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था। हमने उसमें ये किया कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया। मतलब जितना ज़्यादा सप्लाई चेन में या आजकल का जो दौर है उसमें आप जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं ना, क्रिएट करते हैं हर स्टेक होल्डर के लिए, उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। वीएफआर में हमने ये किया कि हमने हमारे जितने भी पैक साइजेस थे प्रोडक्ट्स के, हमने उन सब के डायमेंशंस लिए, उन डायमेंशंस को हमने सिस्टम में एक अपने फीड कर दिया जो जो हम इस प्रोजेक्ट के लिए हम डिजाइन कर रहे थे। हमने हमारी व्हीकल के जो केबिन्स होते हैं उनकी डायमेंशंस लिए और उनको सिस्टम में डाल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर सुजुकी वैन है तो उसका टोटल वॉल हाइट इतनी होती है, विड्थ इतनी होती है और डेप्थ इतनी होती है, और उसको हमने डाल दिया सिस्टम के अंदर और टोटल वॉल्यूम वहां से कैलकुलेट हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट्स के हमने सारे डायमेंशंस लिए और उन प्रोडक्ट्स को हमने डाल दिया उस सिस्टम के अंदर। अब होता ये था कि जब ऑर्डर्स आ गए कस्टमर्स के और रात में जो हमारी जो कस्टमर सर्विस ऑपरेशन जो आईटी टीम होती है जो ऑर्डर सिस्टम में डाल के और वो उसकी पिक लिस्ट और वो सब जनरेट करती थी, वैन फिल रेट वहां से निकलता था। तो वहां से ना वो सिस्टम हमने ऐसा इंटीग्रेट किया था कि वो सिस्टम उसको खुद बता देता था कि भाई ये जो व्हीकल है ना ये आज लो लोड पे जा रही है, तो आप इस लोड के साथ इस वाले, यानी वो एक समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने उसके अंदर थोड़ा सा वो दिया था, प्रोग्रामिंग की थी इस तरह से कि वो सिस्टम खुद सजेस्ट कर देता था कि भाई इस राउट पे जो गाड़ी आज जा रही है उसका लोड 40% है और एक और गाड़ी है जो 20% या 30% के लोड पे जा रही है। तो आप इन दोनों गाड़ियों का लोड एक ही गाड़ी में मर्ज करके भेज सकते हैं एंड यू कैन सेव योर वन व्हीकल। तो यानी एक व्हीकल आपने वहां से सेव कर ली जो कि आप कहीं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स अब अवेलेबल हैं, बट क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड होते हैं, वो आपको खुद से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने ऑपरेशंस की नीड के हिसाब से आपको बनवाने पड़ते हैं। तो इस तरह के आइडियाज आप लगा सकते हैं जिसमें आपकी व्हीकल की एफिशिएंसीज बढ़ जाएगी, उनका जो व्हीकल फिल रेट है आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं।
हमारे यहाँ जो प्रीवियसली व्हीकल फिल रेट आते थे वो 65 70 इसके अराउंड एवरेज चल रहा होता था। बट जब हमने ये वाला प्रोजेक्ट जब हमने डिप्लॉय किया था तो हम जो है वो अराउंड 90% पे हम व्हीकल फिल रेट को अपने लेके चले गए। वो सिस्टम खुद ही बताता था, सिर्फ लोगों को उसको फॉलो करना होता था। अच्छा, चेंज मैनेज इन सारी चीजों में मैं जितने आराम से बता रहा हूँ इतने आराम से होती नहीं है। ये आप जब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, ये आपको लग रहा होगा यार ये तो 5-5 मिनट की कहानी है, बस अभी मैं जो है ना कल ज्वाइन करता हूँ कंपनी और परसों से ये काम शुरू और 6 महीने बाद जो है ना ये सारे रिजल्ट हाथ में। ऐसा नहीं होता। इन चीजों को करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बट ये कि ये इनके रिजल्ट्स बड़े प्रॉमिसिंग होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। और ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा सर्व करते हैं। और अगर आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव किसी कंपनी में कर देते हैं तो आप लंबे अरसे तक याद रखे जाएंगे उस कंपनी के अंदर कि हाँ यार आपने ये काम किया था। इसी तरह एक वो होता है केपीआईज वगैरह। जब भी आप किसी जॉब में जाएं वहां पर केपीआई जरूर सेट करें। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफरेंट कुछ तो वो होते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो हम गूगल पे देखते हैं, कुछ जो है ना वो हम जो बुक्स में पढ़ते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है ना वो रेडी टू इम्प्लीमेंट हों कि आप उसी तरह लें और उसी तरह लगा दें। ऐसा नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट। आप अपने केपीआईज खुद डिजाइन कर सकते हैं कि यार मुझे तो ये चीज परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस तरह इसको परफॉर्मेंस को गेज करना है, तो आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं वेयर हाउसिंग में गया वहां पर ऑपरेशन हैंडल कर रहा था तो मैंने एक केपीआई बनाया था, राइट फर्स्ट टाइम। होता ये था कि स्टॉक की पिकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, सुबह जब वैन वाले को डिलीवर हो रहा है तो वो वैन वाला जब वेरीफाई कर रहा है स्टॉक लेते टाइम तो वो कहता था कि इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये प्रोडक्ट ये नहीं है जो होना चाहिए था, इसकी जगह ये आ गया। तो इस तरह के ना एरर्स होते थे पिकिंग के अंदर। अच्छा, जब तक ह्यूमन साइकी है कि जब तक आप उनको मॉनिटर नहीं करते या जब तक आप उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करते, परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत जरूरी होती है हर हर चीज की, ऑपरेशंस की भी, प्रोसेस की भी और इंसानों की भी। तो जब तक आप नहीं करते ना तो लोग लापरवाही से काम करते हैं। लोग को पता होता है कि यार किसी ने पूछना नहीं है तो बस ये सामान है इसकी जगह ये डाल दो, ये है इसकी जगह ये डाल दो, मतलब जल्दी में ना काम काम चोरी करते हैं। सॉरी टू से, बट काम चोरी होती है बहुत ज्यादा। तो उसको भी मैनेज करने का आप तो हर वक्त सर पे नहीं खड़े हो सकते हर किसी के कि यार नहीं भाई तुम सही पिकिंग करो, तुम सही पिकिंग करो, सही पिकिंग करो। आप कितनी दफा बोलेंगे, कितनी दफा डांट देंगे। तो आपको ये करना होता है कि सिस्टमाइज्ड प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं, परफॉर्मेंस मेजर्स बनाने होते हैं। मैंने वहाँ एक परफॉर्मेंस मेजर बनाया उन पिकर्स एंड पैकर्स के लिए विच वाज कॉल्ड एज राइट फर्स्ट टाइम। आरएफटी कहते थे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, राइट फर्स्ट टाइम। अच्छा, उसका क्या होता था कि स्टॉक पिकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, सुबह जब अगर वैन में जब वो लोड हो रहा है उस टाइम पे अगर उसमें कोई एरर आ गया ना तो वो एरर हम मार्क करते थे। उस एरर को हम मार्क करते थे और हर पिक लिस्ट के ऊपर जिस पर्सन ने उसकी पिकिंग एंड पैकिंग की होती थी उसका सिग्नेचर होता था कि मैंने इसको किया। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि सुबह में जब ये 40 वैन्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आउट हो जाएं तो इन 40 डॉक्यूमेंट्स को लेके आप एक रिपोर्ट बनाएंगे डेली बेसिस, विच विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स पे। उसमें से वो डालना होता था कि इस वैन में एरर था, इसमें नहीं था, इसमें था, इसमें नहीं था, यस नो करके, और कितने एरर्स थे, 2 एरर आए थे, 3 एरर आए थे, 5 एरर आए थे, और उन एरर्स की क्लासिफिकेशन कि वो क्या प्रोडक्ट रिप्लेस हो रहे थे, प्रोडक्ट शॉर्ट थे, प्रोडक्ट ज्यादा रख दिए थे, जो भी प्रॉब्लम था वो उसके अंदर हमने कैटेगराइज कर दिया था। क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि वो बंदा ही गलत कर रहा हो सकता है कि उसकी ट्रेनिंग ठीक ना हो। तो हम चाहते थे कि हम वहां से उन चीजों को आइडेंटिफाई करें। क्या एक बंदा हमेशा एसकेयू को चेंज करके रख देता है, इसका मतलब उसकी एसकेयू की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं है, उसको सिखाने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट। तो वो चीजें हमने वहां से ड्राइव की, वहां से हमने टीएनएस ड्राइव किए, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स हमने परफॉर्म किए वहां से कि यार इस बंदे को ये ट्रेनिंग की जरूरत है, और उस बेसिस पे हमने उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट कर दी। और हमने उनकी सैलरी में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऐड किया जिसको हम कहते थे कि भाई ये आपका ना इंसेंटिव है। अगर आपने 100% पिकिंग पूरे महीने ठीक की है तो ये लेट से 2000 रुपीज है या 2500 रुपए हैं जो आपको उस मंथ की सैलरी में आपकी मिल जाया करेंगे। अच्छा, अब आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कॉस्ट इनकर कर दी, पैसे ज्यादा देने शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट कहीं पर भी पैसे ज्यादा नहीं देती। उससे जो फायदे हुए ना वो बहुत सारे थे। वो जो हमारे सुबह के एक एरर्स आते थे उसको रेक्टिफाई करने में दोबारा वेयर हाउस में जाया जाता था, सामान पिक होके दोबारा आता था, गाड़ी जो है उसकी वजह से लेट हो जाती थी। अच्छा, रिटेल ऑपरेशंस में टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप
जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचे मार्केट में और आपसे पहले कोई और मार्केट में आ जाता है, तो जो रिटेल शॉपकीपर होता है ना, उसके पास कैश बहुत कम होता है। जो पहले आ जाता है वो पैसे उसको दे देता है, और जब आपकी वैन जाती है तो वो कहता है कि जी मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, तो आप जो है वो अब इस स्टॉक को वापस ले जाएं और कल ले आइएगा। तो जब आप उस दिन वापस जा रहे हैं वो वेस्ट है, और जब आप अगले दिन जा रहे हैं तो आप दोबारा से पैसे लगा रहे हैं उस फ्यूल के ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर जो वहां जा रही है। अच्छा, कस्टमर है तो उसको आप ये बोल नहीं सकते कि नहीं भाई कल नहीं आएंगे, अब अगले हफ्ते आएंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर वो कह रहा है कि कल आना है तो आपको कल आना है। तो वो सारा सिनेरियो एनालिसिस जब हमने किया तो हमने ये देखा कि यार ये जो कॉस्ट है ना ये बहुत कम है उस कॉस्ट से जो हम वहां पे बेयर कर रहे हैं। तो हमने उनको इंसेंटिव डाला और उनकी परफॉर्मेंस मेजर का ये केपीआई बनाया कि भाई राइट फर्स्ट टाइम केपीआई होगा, जिसके 100% राइट होंगे पूरे मंथ में। उसमें हमने 100 नहीं रखा था, हमने एक दो, जाहिर है इंसान है तो गलती होती है, तो एक दो का मार्जिन देके हमने 98% या 99% रख के हमने कहा ये आपका केपीआई। उस बेसिस पे हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, और जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स तक लो जाएगी उसका हम जो है ना वो फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाएंगे, क्योंकि इट मींस कि वो द पर्सन इज नॉट फिट फॉर द जॉब। अगर वो 3 महीने कंसिस्टेंटली इंप्रूव नहीं कर रहा, इसका मतलब या तो उसका इंटरेस्ट नहीं है या वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उस तरह से जब डिफरेंट आप कैटेगरी करके परफॉर्मेंस मेजर्स बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए, तो फिर आप एक सुकून वाले और बेहतरीन ऑपरेशन अपने चला सकते हैं। तो ये काम भी मैंने वहाँ पर किया और उससे फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी आए और नज़र आए, निकले। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ थी, इसी रिटेल ऑपरेशंस के हवाले से शेयर करना चाहूँगा। ये वो एक्सपीरियंसेस या वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ जो ना शायद बुक्स में नहीं होगा, बट ये वो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं। जब आप कॉर्पोरेट में कदम रखेंगे तो आपके सामने जो वो वाले जो किताब वाले मसले ना वो नहीं होंगे, क्योंकि वो अब बहुत सारे सिस्टम्स उन चीज़ों को रिप्लेस कर चुके हैं, उन चीज़ों को सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर चुके हैं। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी देनी होती है, आपको सिर्फ अपने डिज़ाइंस देने होते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। बट ये वो चैलेंजेस हैं जो असल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस पे इम्पैक्ट लेके आते हैं, और जिन चीज़ों पे आपको मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है कि यार व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अगर आपके आने के बाद भी ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें आप हम फेस कर रहे हैं, अगर फिर भी हमारा बिजनेस जो है वो लॉस हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो व्हाट यू आर डूइंग एज अ बिजनेस मैनेजर, एज अ सप्लाई चेन मैनेजर। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो आपको हल करने होते हैं। एक प्रॉब्लम आता था, जो मैं रिटेल के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर बात करूं, तो जो रिटेल वैन में बैठ के सप्लाई के लिए जाते हैं लोग, उनको यूजुअली कहते हैं सेल्स ऑफिसर या सप्लाई ऑफिसर, जो शॉप टू शॉप जाके सामान देते हैं और पैसे कलेक्ट करते हैं। अच्छा, वो क्योंकि एक बहुत ही ना लो लेवल एक वो है, एम्प्लॉय है होता है, जो जिसकी बेचारे की शायद 30,000 रुपए तक की सैलरी होती है, 25 से 30 हज़ार रुपए उसकी सैलरी होती है, पूरा दिन धूप में उसने काम करना होता है। तो बहुत ही ना वो मतलब मुश्किल होता है उस लेवल को चलाना, कि आप उसको बहुत सुकून से और बहुत ही तरीके से आप चला सकें, और आप पूरा 100% आप डिपेंड कर रहे होते हैं उसी टीम के ऊपर। अगर वो टीम आपकी जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, नहीं कर रही अगर, तो जो अल्टीमेटली जवाब दें, जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप हैं। सवाल आपसे होगा, डिलीवरी उसने नहीं की होगी, बिजनेस उसकी वजह से खराब होगा, लेकिन सवाल आपसे होगा। तो जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस समझें कि आपकी परफॉर्मेंस होती है, तो अब उनको चलाना भी एक बहुत डिफिकल्ट होता है एक आपके लिए। सेकेंडली ये कि उनकी मॉनिटरिंग करना, वो करना, वो भी डिफिकल्ट होता है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। टाइमिंग इज एवरीथिंग, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि सुबह जो गाड़ी मार्केट में जल्दी जाएगी वो सबसे अच्छा बिजनेस करेगी, चाहे वो यूनिलीवर की हो, चाहे वो पीएनजी की हो, चाहे वो फिलिप मॉरिस हो, चाहे कोई भी, क्योंकि शॉपकीपर के पास लिमिटेड पॉकेट होती है, वो उसी उसी पैसों को ही वो सबको दे रहा होता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। हमने ऑपरेशन कट ऑफ टाइम रखा हुआ था सुबह 8:30 बजे, कि 8:30 बजे हमारी वैन जो है वो मार्केट में डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगी, और उसकी पूरी एक असेसमेंट होती है कि कौन सी मार्केट कितने बजे खुलती है, उसकी गाड़ी कितने बजे लगेगी, कितने बजे लोड होगी, और कितने बजे उसको मार्केट में पहुंचना है। प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा, आपने लोगों को ऐसे बाउंड कर दिया अटेंडेंस के लिए कि भाई सुबह जो है ना 8:30 से पहले पहले, सॉरी 8 बजे, 8 बजे आपने ब्रांच पे आ जाना है जहाँ से ये सारा काम शुरू होना है। लोग लेट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, खैर उसके लिए आपने वो टाइमिंग मशीन लगा दी, अटेंडेंस लग रही है लोगों की कि भाई टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहा उसको आपने एक दो दफा वार्निंग दे दी, वो टाइम पे आना शुरू हो गया। बट इंसान है तो
इंसानों की डिफरेंट वो भी ज़रूरतें भी है ना। अब होता ये था कि ब्रांच में आ गए, टाइम पे आ गए, आके जो है ना वो एक दूसरे से गपशप हो रही है, और सुनाओ यार खाला कैसी है, तुमने बताया था अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसे हैं। अच्छा, इन सब चीजों में ना हो क्या रहा है कि आपके ऑपरेशंस डिले हो रहे हैं। वो बेचारा अपना जो उसका प्राइमरी काम है वो नहीं कर रहा, वो आके सबकी खैर खैरियत पूछ रहा है, घर वालों का हाल पूछ रहा है। अच्छा फिर यार आओ यार चाय पीते हैं कैफेटेरिया में, दिल चाह रहा है। अब वो दो लोग गए चाय पीने बैठ गए, अब वहां पे वो गपशप शुरू हो गई, और आपको पता है इस तरह की चीजों में टाइम नहीं पता चलता। ये वो रियल लाइफ चैलेंज है जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई चीज भी हैंडल करनी पड़ जाएगी, लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ मैनेजर, तो ये भी देखना पड़ा। अब फ्लोर पे निकले तो जाके देखते हैं तो जी वो व्हीकल लोड नहीं हो रहे। भाई क्यों नहीं हो रहे, सब लोग टाइम पे आए हुए हैं, सब कुछ है। नहीं, वो दो लोग उधर चाय पी रहे हैं, वो तीन लोग अपने कन्वर्सेशन में बैठे हुए हैं। वो ये अब आप किस से पीछे भागेंगे आपके, यार ये कर लो ये कर लो, ये ऑपरेशन है भाई, ये मजाक नहीं है, किस किस को समझाएंगे, और उस लेवल को आप नहीं समझा सकते ये सारी चीजें। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इन लोगों को किस तरह करें, बैठे सोचा सोचा करते करते हम लोगों ने कहा कि यार हम इसके लिए भी ना एक वो बना देते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इसकी भी हमें बनानी पड़ेगी। वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे बनाई हमने, कि हमने कहा कि ठीक है, अभी सिर्फ हम एक चीज रिकॉर्ड करते हैं कि ये कितने बजे ब्रांच में आ गए। हमने कहा हम अपने डॉक्स पे जहाँ पे व्हीकल लोड होती हैं वहां पे भी हम स्कैनर्स लगाएंगे। स्कैनर्स का वो हम पैनल एक लगा देंगे, और इन लोगों के जो आईडी कार्ड्स हैं, RFID कार्ड्स, उनके साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे, और हर सेल्स ऑफिसर का टाइम रिकॉर्ड होगा कि वो कितने बजे उसने ब्रांच में पंच इन किया, उसके बाद वो कितने बजे उसने डॉक पे पंच इन किया, कितने बजे व्हीकल लोड करके उसने डॉक से आउट किया, और फिर कितने बजे उसने ब्रांच से आउट किया। क्योंकि फिर ये होना शुरू हो गया कि जब हमने ये कर दिया कि वो ब्रांच पे आ गए, उन्होंने लोड कर दी, गाड़ी लोड करके साइड में खड़ी कर दी। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो गाड़ी लोड खड़ी हुई है बाहर, जा क्यों नहीं रही सर, वो चाय पीने गए। तो मैंने कहा यार इसका मतलब मेरी गलती थी, मैंने एक चीज छोड़ दी। मैंने कहा इनका ब्रांच आउट भी जो है ना हम इसमें लॉक करेंगे। तो हमने ब्रांच आउट भी, फिर उस सॉफ्टवेयर वाली कंपनी को बोला कि इसमें एक चीज और डालो, इसमें ब्रांच का आउट भी लॉक करना शुरू कर। उससे होता ये था कि फिर डेली एक ना डैशबोर्ड स्क्रीन पे चलता था कि ये व्हीकल है, इसका जो ऑफिसर है वो इतने बजे ब्रांच आया, इतने बजे इसने व्हीकल पे जाके इसने लोडिंग स्टार्ट की, इतने बजे इसने लोडिंग कंप्लीट की, और इतने बजे ये ब्रांच से आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद भी हम छोड़ते नहीं थे, गाड़ियों में लगे हुए थे ट्रैकर्स। तो जो उनके सुपरवाइजर्स होते थे उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि इस तरह के केसेस भी आए, आप लोग मतलब मुझे भी हंसी आती है सुन के, आप लोगों को भी आएगी, कि व्हीकल यहाँ से गई भी है, अब एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई वो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है उधर ना, सुपरवाइजर की एक्सपेक्टेशन ये है कि काम हो रहा है। कस्टमर की कॉल आ गई कि जी आज आपकी डिलीवरी नहीं आई, क्या बात है। तो सुपरवाइजर कह रहा है जी गाड़ी टाइम पे है, सब कुछ है, डैशबोर्ड नजर आ रहा है कि जी गाड़ी निकल गई थी और ये सब सब ओके है, आप कैसी बात कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, एक्सीडेंट होता तो भी रिपोर्ट आ जाती। अच्छा, अब वो बंदे को किया कॉल, तो वो कहने लगा कि जी नहीं हम तो रास्ते में ही हैं और हम जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये 20 मिनट का रास्ता है, तो इसमें 1 घंटा कैसे लग सकता है। तो जब उनका ट्रैकर निकाला गाड़ी का, तो उसमें से पता चला कि वो साहब उनको जाना इस डायरेक्शन में था, तो वो उस डायरेक्शन में कहीं अपने रिश्तेदार को मिलने चले गए उस गाड़ी में बैठ के। अच्छा, गए क्यों, गए इसलिए कि वो पता नहीं खाला थी, उनकी तबीयत खराब थी। तो मैंने कहा अभी तो मार्केट खुलने में टाइम है, मैं इतने खाला को देख लूँ। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे जिनको आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेशंस आपको जो है ना वो फेस करना पड़ता है, और आप रियल लाइफ में यही होता है, आपको यही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो फिर हमने उसमें ये किया कि हमने जो उनका व्हीकल का ट्रैकिंग सिस्टम था उसको भी हमने उस पर डलवाया, विजिबिलिटी पे डलवाया, और हम सुपरवाइजर का काम होता था कि वो उसको वॉच करता रहे कि भाई ये गाड़ियां अपने राउट्स पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और फिर उसकी एक एडवांसमेंट हमने प्रपोज की थी, बट वो हो नहीं सकी थी मेरे सामने, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ के और मैंने इधर ज्वाइन कर लिया था। उसमें हमने ये प्रपोज किया था कि जो हमारे एसओज हैं उनको हम स्मार्टफोन्स देंगे, और स्मार्टफोन्स के अंदर वो एप्लीकेशंस होंगे, जैसे करीम, या उसमें वो हमें गाइड करता है ना कि शॉर्ट, गूगल मैप जैसे गाइड करता है कि शॉर्टेस्ट वे पॉइंट पे जाने का ये है। ताकि लोग बड़े भोले बन जाते थे कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी रास्ता है, हालांकि 3 साल से आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये रास्ता नहीं। मैंने कहा आज मैं इधर से चला जाऊँ, तो क्यों चले जाऊं भाई इधर से, जब ये सीधा रास्ता जा रहा है तो आप इधर से क्यों जाएंगे। तो उस पर हमने कहा था कि हमने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था कि उसकी स्मार्टफोन की कॉस्ट थी जो कि 15-20 हज़ार में आजकल स्मार्टफोन मिल जाते हैं अच्छे।
वो हमने कहा था कि आप दे दें सबको, सारे एम्प्लॉयज को, और उसमें से हम इनको ट्रैक भी कर सकेंगे, और ये इनके पास कोई बहाना नहीं होगा, इनको जस्ट लाइंस को फॉलो करना होगा कि जो लाइंस इनको दिखा रहे होंगे कि इस लाइन पे जाना है, इस लाइन पे जाना है, ये इसको फॉलो करेंगे, और यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग जो है इनके सुपरवाइजर्स करेंगे, जो उसको देख सकते हैं। जी मलिहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी एक एक्चुअली इसी तरह का, जैसे आपने ये रूट वाली बात की थी ना, इसका एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ कॉर्पोरेशन, बट आई वाज वर्किंग एट अ ऑर्गेनाइजेशन एंड हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके अंदर आई हैड टू डील विद सम लॉजिस्टिकल स्टाफ। अब ओके। उसमें मसला ये था कि उन लोगों का वो वैसे ही थोड़े ओवरवर्क थे, बिकॉज उनका काम ये था नहीं, लेकिन उनसे ये काम लिया जा रहा था ऑन अ ओके। परपेचुअल बेसिस। अच्छा अच्छा। वगैरह का था बिकॉज इट वाज एन आर्काइव, लेकिन मेक शिफ्ट उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कराई जाती थी। तो उसके अंदर जब भी ट्रैवलिंग वाली चीज़ होती थी, ऑब्वियसली दे हैड टू, पहले ये सिस्टम नहीं था कि आपको फ्यूल के लिए मार्क करना पड़ता है कि कितने माइल्स हैं और कितना आपने ट्रैवल किया, राइट। लेकिन अगर जैसे ऑफिस की टाइमिंग्स 9 से लेकर 6 बजे तक है ना, तो अगर उनको जाना होता था, तो मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि दे थॉट was younger than a lot of other people, so they thought कि इनसे थोड़ी चिलिंग ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें करते थे कि अब अगर वापस आना है ना और 2 घंटे रहते हैं, तो उनको पता है कि अब अगर हम 5 बजे वापस आ गए 5:30 के बजाय, तो हमें दूसरा काम दे दिया जाएगा। तो वो क्या करते थे, लंबा रास्ता लेते थे। जैसे हम आईबीए के अंदर ही कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे जो रिलेशन नहीं होती थी, तो वो लंबा बिल्कुल रास्ता लेंगे और फिर वो बोलेंगे कि सही आप बताएगा नहीं, और एक काम करते हैं हम चाय पी लेते हैं और वो सब मिलके चाय वाय पीने चले जाते थे, या फिर बोलते थे आप भी पिए ये वो करके। जी जी नाउ जी आई बिल्कुल रियलाइज कि आई गेस इस सप्लाई चेन में ये बहुत बड़ा बिल्कुल मैनेजमेंट इशू है कि आप किस तरह असर्ट करेंगे कि भाई नहीं ले लंबा बिल्कुल रास्ता। बिल्कुल होता है। असल में ना वो जो डिलेज होते हैं ना, वो सिस्टमेटिक डिलेज बहुत कम होते हैं। जो हम कह रहे होते हैं कि डिलीवरी टाइम पे नहीं गई, कोई ऑर्डर कस्टमर को एग्जीक्यूट नहीं हुआ टाइम के ऊपर, या किसी डिलीवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आप अक्सर जो लोग हैं ना, वो आके आपको ये भी शिकायत करते हैं कि जी हमें तनख्वाह मिलती है 8 घंटे की जॉब करने की, और हमें तो इतना इतना टाइम लग जाता है। बट जब आप उनकी एग्जैक्टली। असेसमेंट करते हैं ना कि क्या वाकई उनका काम 8 घंटे का है, तो ट्रस्ट मी, मैंने इतनी असेसमेंट्स परफॉर्म किए, मुझे किसी का भी काम 6 घंटे से ज्यादा नहीं मिला। 6 घंटे, अच्छा वो 1.5 से 2 घंटे का जो टाइम है, वो वैसे भी कंपनीज भी कहती हैं कि यार वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी फूड की नीड्स हैं, खाना पीना उन्हें करना होता है, लोगों ने नमाज पढ़नी होती है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ज्यादातर लोग मुस्लिम है, तो उन्होंने नमाज पढ़नी होती है, तो उसको उनका टाइम दिया जाता है। तो हम जब भी अपनी कोई प्लानिंग इस तरह की कर रहे होते थे, तो हम हमेशा 1.5 घंटा जो है ना वो रखते थे कि ये इनको मिलना चाहिए, मिनिमम 1.5 आवर। उसके बावजूद लोग रोते आते थे कि नहीं जी हमें तो टाइम नहीं मिलता, 8 घंटे की नौकरी है, इतना इतना काम कराते हैं, वो करते हैं। तो वो बेसिकली वो उनके अपने साइकोलॉजी की वजह से उनके डिलेज होते हैं, और कुछ नहीं होता। तो बट आपको, क्योंकि दायरा है, मैंने कहा कि हैंडलिंग एक डिफरेंट होती है, तो आपको बहुत ही तरीके के साथ इस मसले को भी हैंडल करना होता है। अदरवाइज आप अगर तरीके से हैंडल नहीं करें, तो काम वो लोग खराब करेंगे जानबूझ के, और जवाब आप दे रहे होंगे सबके सामने। जी अबीरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि आपने अभी एक ऐप की बात की कि जिसमें हम स्मार्टफोन्स दे देंगे अपने जो भी जी जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग काम कर रहे हैं। सो मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि जी व्हेन आई वाज इंटर्निंग, तो वहाँ पर आई वाज विद द क्वालिटी डिपार्टमेंट। उनका यही इशू था कि टेक्नीशियंस जो हैं वो, आई वाज वर्किंग एट डॉलिंस, तो वहाँ पर इशू ये ओके था कि टेक्नीशियंस जाते हैं, घर पे जाते हैं और जाके रिपेयर कर रहे होते हैं, घंटे लग जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक्चुअली कितना टाइम्स वो स्पेंड कर रहे हैं एट द हाउस, एग्जैक्टली और कितना टाइम वो रूट पे स्पेंड कर रहे हैं और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंस आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, तो उस वक्त आई वाज डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर फॉर देम। तो उनके सॉफ्टवेयर यही डिज़ाइन करना था कि ट्रैकिंग एप्लीकेशन बनानी थी फॉर द टेक्नीशियंस, अच्छा के आप ट्रैक कर सकें कि वो ऑफिस में कब आए, ऑफिस में आने के बाद वो फिर रूट पे कब निकले, रूट पे उनको आप डैशबोर्ड के थ्रू ट्रैक कर सकें कि वो किधर जा रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सा रूट ले रहे हैं, लंबा रूट लिया या छोटा रूट लिया। फिर जाके उनको लोकेशन पे ट्रैक करते थे कि कितना टाइम उन्होंने एक्चुअली घर पे स्पेंड किया और कितना टाइम वो एक्चुअली मतलब सर्विस टाइम के अंदर था, कि या वो 4-5 घंटे लगा रहे हैं। सो उससे वो एफिशिएंसी और थोड़ा सा परफॉर्मेंस की मेजरमेंट्स उसमें से निकल सकती थी। सो इट वाज इंटर्नशिप का था, तो वो हमने एक छोटा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो उनको बना के दे दिया था, विच दे वर्कड ऑन फर्दर। बट इट्स क्वाइट अ फीजिबल आइडिया जिसमें आप उनको अकाउंटेबल रखते हैं और क्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं एट द सेम टाइम। Yeah, exactly. Thank you so much, Abira, for valuable contribution and sharing your experience.
यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी तरह के अब डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर जो है ना कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, और वो चाह रही हैं कि ह्यूमन, मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस जब तक इंसान को गेज नहीं किया जाता, खासतौर पे उस फील्ड फोर्स को जब तक आप मॉनिटर नहीं करते ना उनकी परफॉर्मेंस को, तो वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उनको बाउंड इन सब चीज़ों पे रखना होता है, और जब उनको ये पता होता है ना कि अब वी आर अंडर सर्विलियंस, तो फिर ट्रस्ट मी कि वो परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। जब हमने ये सारे काम किए, तो जो लोग ये आके मुझे शिकायतें करते थे ना कि जी 9-9 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं सर, आप 8-8 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, वो 6 घंटे के अंदर अपना काम खत्म करके वापस आते थे और अपने घरों को चले जाते थे, 5:30-6 बजे से पहले पहले अपने घरों में होते थे। तो ये बेसिकली जो बेनिफिट्स है ना वो म्यूचुअल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हैं और उनकी अपनी जो लाइफ है उसके लिए भी ये बेनिफिट्स इसके आते हैं। बट ये कि उनको समझाने में ज़रा टाइम लगता है और उसको डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूँ और समझ आ रही है, उस लेवल पे इस तरह नहीं होता, उनको ज़रा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझाना पड़ता है। जी अविनाश, आपने हैंड रेज किया था, देन वी विल कम टू आमना। जी बिलाल भाई, आप अभी बात कर रहे थे रिगार्डिंग फील्ड फोर्स ना। सो आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द फील्ड फोर्स पर्सनली, क्योंकि मेरी एक जगह मैंने इंटर्नशिप की थी, हबसॉल्ट का, अगर आपने नाम सुना हो। या एग्जैक्टली। तो दे व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, उनके पास 4 वैन्स होती थी और वो सुबह के टाइम निकलती थी डिफरेंट मार्केट्स में ना, कराची की। सो आई हैड द एक्सपीरियंस कि मैं उनके साथ जाऊं और उनके साथ जाके सेल्स करनी थी मुझे। इंटर्नशिप हमारी थी और उसमें साथ मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस करना था, ये वाला। सो व्हेन वी वेंट आउट विद देम, पहले तो हमारा होता था कि हम लोग स्टार्टिंग में गए, मार्केट विजिट किए, एंड देन वी जस्ट केम बैक, हमें थोड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। आफ्टर सम टाइम जब हमने उनके साथ बैठ के उन वैन्स में जाना शुरू किया, देन वी रियलाइज कि असल मार्केट डायनामिक्स क्या है। वहां पे जाओ, रिटेलर से बात करो, उन्हें कन्विंस करो कि भाई आप हमारा जो नमक है वो अपने पास रखें। एंड दैट वाज एक्चुअली अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे नहीं अंदाजा था कि जो फील्ड फोर्स होती है उनको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। वो बेचारे सुबह सुबह आए हुए होते हैं, मतलब वो लिटरली बेचारे लगते थे मुझे उस टाइम पे। बेचारे होते हैं, बिल्कुल, मैंने भी इसीलिए यही कहा था स्टार्ट में। वो आते हैं, उन्होंने लिटरली कोई नाश्ता नहीं किया हुआ होता, वो आते हैं बस गाड़ियां लोड करनी है और मार्केट में निकलना है। उनका माइंड में ये होता था कि आज ये गाड़ी खाली करके आनी है मुझे किसी तरह से। और मुझे अंदाजा है कि एक उनको जैसे एक लोकेलिटी है जो उनको असाइन की गई है, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद में जाके आपने सेल्स करनी है। अगर वो वहां पे सेल्स नहीं होती, फिर उनका असल में दिमाग चलना शुरू होता है कि अब ये चीज कहाँ मैंने डंप करनी है। फिर उनकी फेवरेट जगह होती थी जोड़िया बाजार, जोड़िया बाजार में जाके डंप कर दूंगा। बिल्कुल। वो ऐसे चैलेंजेस थे कि अगर गाड़ी खाली होके नहीं आई वापस, मतलब गाड़ी अगर भरी वापस आ गई, रिटर्न्स आ गए हमारे पास, तो ये अब उनकी सैलरी से डिडक्ट होगा। बिल्कुल। उनके पास इस तरह के चैलेंजेस होते थे, और वो लिटरली मुझे नहीं समझ आता था कि 15-20 हजार में वो लोग काम कर रहे हैं, इतना हेक्टिक काम कर रहे होते थे कि आई डोंट नो, अगर मुझे ये काम मिलेगा तो शायद मैं अगले दिन बोलूंगा मुझे नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूँ कहीं और। इस तरह का काम होता था बहुत। बिल्कुल। लिटरली। अच्छा, थैंक यू अविनाश फॉर एडिंग इन। अविनाश, आपने जो बात की ना वो मॉडल होता है स्पॉट सेलिंग मॉडल, जिसमें उस सुबह में बस एक लोड बंदे को दे दिया जाता है कि जाके इसकी एग्जीक्यूशन करो और ये सेल करनी है। वो भी एक मॉडल है, बिल्कुल, वो भी एक काम करता है। लेकिन जो मेनली जो सेल्स होती है ना वो प्री सेल मॉडल पे की जाती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एफएमसीजीज की, तो उसमें प्री सेल मॉडल होता है जिसमें ऑलरेडी यू हैव एन ऑर्डर्स, और वहां पे ऑर्डर्स की सिर्फ आपको डिस्पैच या डिलीवरी करनी होती है वहां जाके कस्टमर की साइट के ऊपर। आप जो मॉडल कह रहे हैं बिल्कुल वो एग्जिस्ट करता है, बट एफएमसीजीज में वो कम है, इतना नहीं है। उसका वॉल्यूम आई थिंक लेस देन 5% है उस सेल्स का, जो आप स्पॉट सेलिंग कहलाती है वो। तो बिल्कुल उसके चैलेंजेस डिफरेंट है। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि आप बैठ के गए, तो एग्जैक्टली ऐसे ही करना पड़ता है भी जब आप लोग भी अपने उसमें जाएंगे। उसमें कहते हैं राउट राइडिंग, कहते हैं उस चीज को टेक्निकल टर्म्स में। राउट राइडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब शुरू में गया था तो ऑपरेशन और ये सब, जब मुझे, अच्छा, कहानियां बहुत आपको मिलती हैं कि ये हो गया था तो यूं हो गया, तो ये होता है वो होता है, आपको बहुत कहानियां मिलेंगी। बट आपको रियलिटी उसी वक्त समझ में आएगी, पता उसी वक्त चलेगा जब आप खुद से उस गाड़ी में बैठेंगे और आप जाएंगे गर्मी में, धूप में, पसीने में, आप सारा काम करेंगे, तो आपको एहसास भी होगा कि उसके चैलेंजेस क्या है, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं और किन चीजों को एड्रेस और फिक्स करने की जरूरत है। तो मैंने खुद जो है वो सुजुकी ट्रेड वैन में और शेजोर में बैठ के अपने कपड़े खराब करके, अपना हुलिया खराब करके,
मार्केट में खुद जाके सामान उठा के शॉप्स तक डिलीवर किया है, एज अ लोडर भी मैंने जो है ना परफॉर्म किया। द ओनली रीजन वाज कि ना मैं समझ जाऊं कि यार प्रॉब्लम्स हैं क्या, ताकि मैं उनको हल कर सकूं। और बहुत काफी दिन मैंने ये काम एक्टिविटी की असेसमेंट करने के लिए कि मैं देख सकूं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं। जब मैं जाता था जिस व्हीकल पे, वो व्हीकल जो है ना, क्योंकि मैं सिर्फ काम कर रहा होता था, तो वो फ्री हो जाती थी 3 साढ़े 3 बजे, 4 बजे ब्रांच वापस आ जाती थी। बाकी लोग कंप्लेन करते थे कि नहीं यार, जो मुझे कहता था ना कि हमारे राउट पे बहुत टाइम लगता है, मैं कहता था चलो मैं साथ चल रहा हूँ। तो जब मैं साथ जाता था तो उस दिन वो टाइम पे हो जाता था काम। तो पता चलता था कि वो कहानियां होती थी कि वो अपना बस एक रोना वोना बिला वजह का लगा के रखना। तो ये चीजें बड़ी आपको काम आती है। जी आमना, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? Yes. So basically, I was just going to add on to 2 points. One on what you just said. We had the similar concept of work with, जिसमें ये होता था कि आपको हर area manager को in a month you have to perform at least 15 work with, जिसमें आप अपने जो sales representative है उसके साथ जा रहे होते थे, सारी दुकानें कर रहे हैं, उसका check कर रहे हैं, because that basically ensures the person as well as your रिटेल जो आपका एक्चुअल कस्टमर है, कि आपको भी पता है कि किससे बात करनी है अगर ये बंदा सही काम नहीं कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेनेवर यू डू अ वर्क, 15 दुकानों के बाद ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर उस पे। सो दैट इज आल्सो अनदर थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस, के भाई तुमने जाना भी है आगे, सिर्फ 15 दुकानें करके आना नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज सिस्टम, जिसको हम ISMS। उसमें ये होता था कि पहले दे ओनली हैड, उसमें सिर्फ आपका ऑर्डर, सो बेसिकली PMI हैज अ स्पॉट सेल, प्री बुकिंग आपकी सिर्फ होलसेल मार्केट के ऊपर होती है, रिटेल के ऊपर आपकी स्पॉट सेलिंग भी चल रही होती है। तो उसमें ये होता था कि आपके पास जो डिवाइस है, so these people are also बेचारे, but they're also very very street smart. They know how to make, after a time they know how to make a workaround within these systems. So they will make sure कि ठीक है हमारे पास सिस्टम है जिससे लॉग इन करना है और लॉग आउट करना है, बट उनको ये भी आता होगा कि उसके अंदर टाइम कैसे चेंज करना है। तो वो आप ही की डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठ के टाइम चेंज करके उस पे लॉग इन करेंगे, फिर टाइम चेंज करके उसको लॉग आउट। दे आल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ जियो, जिसके अंदर हर आउटलेट के ऊपर आपकी टैग थी जियो लोकेशन। ओनली देन दे विल बी अ चेक इन ऑफ दैट आउटलेट, अदरवाइज इट विल नॉट बी चेक्ड इन। तो वो जब सिस्टम आया था, आई सो हाउ द पीपल विद इन द सिस्टम ऑल्सो चेंज्ड, बिकॉज दिस चेंज मैनेजमेंट हैज टू बी लेड बाय दैट पर्सन, बिकॉज ये लोग they really fear this part, because उनको पता है कि इस part पे जब वो आएंगे, they need to either really work in, or else they know they are out of the system, because it's not just the area manager, but it's also their job which is on the line after that. So they need to start working on this as well, because ये भी एक ask them into check, but over a period of time आपको controls उसके ऊपर जरूर डालने पड़ते हैं, क्योंकि within after a certain period of time वो इसका भी कोई तोड़ निकाल लेंगे। Like you have to be assured of that कि these people know how to work around it, और किस तरह से किसी और बच्चे को जाके भेज देंगे कि तुम जाके करके आ जाओ। There are numerous ways of how they can find that out. So I think उसके अंदर जो controls आपको डालने होते हैं आपके operating system में, which is why before implementing you always put a check on कि क्या-क्या इसके foolproof areas हैं या क्या-क्या areas हैं जो कि after implementation आप इसको एक जगह पे टेस्ट करके उसकी जो systems हैं उसको आप improve कर सकते हैं। Exactly, Amna. कोई भी system, thank you so much first of all for such a valuable contribution. बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने भी स्टार्ट में यही कहा था कि कोई भी सिस्टम हम ला रहे हैं तो पहले वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसमें से कुछ इस तरह के रास्ते निकल तो नहीं सकते। अगर नहीं निकल सकते तो फिर तो ठीक है, आप यू आर गुड टू गो विद द डिप्लॉयमेंट। अगर निकलते हैं तो फिर आपको पहले उनको सील करना होता है उन सारे रास्तों को, एंड देन आप किसी भी सिस्टम को लेके और डिप्लॉय करते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच आमना। उमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, so Assalamu alaikum Bilal. First of all, I would like to thank you for delivering this lecture and giving us an insight as to how things work in the real life. मेरा क्वेश्चन जरा थोड़ा सा theoretical और management theory based है यहाँ पर।
सो बेसिकली जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ के ऊपर, जिस तरह आमना ने भी कहा कि हर चीज़ के ऊपर आपने कंट्रोल रखा हुआ है, देन व्हाट दे डू इज दे फाइंड लूप होल्स इनटू द एंटायर प्रोसेस. मेरा क्वेश्चन ये है कि डोंट यू थिंक कि दिस ओवर एक्सर्टेड कंट्रोल ओवर द वर्कफोर्स इज द रीजन व्हाई दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे? यानी अगर आप उनको एक लेवल ऑफ ट्रस्ट और एक लेवल ऑफ एजुकेट, यानी पहले उनको ट्रेन करें and then you let them do whatever they want to do, and based on आप उनको management जो है by trust आप उनको manage करें. Don't you think this should be the approach moving forward, considering कि कितनी education की वो ज़्यादा हो गई है, and the fact कि उनको इतना overly administer किया जाता है is the reason why they are so जुगाड़ू in the first place. Okay. Thank you, Umar, for So the this is my question. question कि क्या इस तरह की आपकी कोई experience है जिसमें आप लोगों ने trust करके भी देखा हो, but yet it failed, something like that? So if you can provide me an experience-based situation, so that would be grateful. बिल्कुल मैं आपको देता हूँ. उमर, आपने सही कहा कि हम ये इस तरह क्यों नहीं कर रहे कि उनको ट्रस्ट कर लिया जाए और वो सारी चीजें, बट द पॉइंट इज के जो मैनेजमेंट है ना, या जो आपकी कॉर्पोरेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर आपको चीजों को टाइम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको आपने नंबर्स में दिखाना ही दिखाना है. आप हर किसी से पूछ के किसी टाइम को तो नहीं लिख सकते ना. आपने कहा कि यार बजाय इसके कि मैं 25 लोगों को डेली सुबह खड़ा करूं, उनसे टाइम पूछूं, या आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सी वो बात करूं अटेंडेंस के हवाले से, और बहुत सारी मल्टीनेशनल्स में खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारी जो लोकल कंपनीज है वहां पर अभी भी अटेंडेंस सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. तो जब आप जाते हैं तो वो आपकी अटेंडेंस को या तो थ्रू थंब या फेशियल एक्सप्रेशंस वो उसको पंच करते हैं आपके अटेंडेंस को कि आप कब इन हुए, कब आउट हुए, क्या हुए. तो वो एक मैनेजमेंट वहाँ का प्रोटोकॉल है जिसको वो बनाते हैं कि जी ये करना है. और हो सकता है उस बिजनेस की नीड भी हो, कुछ जगह पे टाइमिंग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कुछ फंक्शंस के लिए कि उन्होंने इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है. अच्छा, कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि क्या फील्ड टीम के लिए, तो फील्ड टीम में ना जो एक्सपीरियंसेस हैं, जाहिर है एक अरसे से ये सारा वो चलता आ रहा है इन द एनवायरनमेंट वी आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान. तो एक सर्टेन परसेंटेज तो आप कह सकते हो कि आप उनके लिए इस पे डिप्लॉय कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में ऐसे लोग भी हैं फील्ड टीम के जो शायद 20-30% अगर मैं कहूँ कि इतना मैंने देखा कि वो लोग ऐसे थे कि जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जिनको मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, जिनको सुपरवाइजिंग की जरूरत नहीं है. उनको दे आर वेल ट्रेन्ड, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव द ओनरशिप एंड एवरीथिंग. बट द पॉइंट इज कि आप उन 30% को लेके या उन 40% को लेके आप अपना पूरा बिजनेस तो डिलीवर नहीं कर सकते, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60 और 70%? तो उनके लिए आपको इस तरह के चीज चाहिए होते हैं, इस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं. और ह्यूमन साइकी भी है, मतलब इट्स नॉट लाइक के मेरे भी कुछ कंट्रोल है. देखिए केपीआईज या परफॉर्मेंस मेजर्स जो है ना वो हर किसी के लिए होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं मैनेजमेंट की जॉब कर रहा हूँ तो मेरे परफॉर्मेंस मेजर्स नहीं होंगे, या कोई सेल्स की जॉब कर रहा है तो उसके केपीआईज नहीं होंगे. तो केपीआईज हर किसी के होते हैं. बट क्योंकि लेवल डिफरेंट है तो हो सकता है मुझे अपने 8 घंटे या 9 घंटे की जॉब में मेरे जो बॉसेस हैं या जो मेरी मैनेजमेंट टीम है वो मॉनिटर ना करती हो कि इसने इतने बजे क्या किया, इतने बजे क्या किया, इतने बजे क्या किया. ऐसा नहीं हो, क्योंकि मेरा काम भी वैसा नहीं है. मेरे डिलीवरेबल्स हैं जो मुझे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ असाइनमेंट्स हैं जिनकी टाइमलाइंस है. मेरे डिलीवरेबल्स हैं मंथली बेसिस के ऊपर के मुझे मंथ में ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मुझे कंप्लाई करना है. तो मेरी असेसमेंट वो होती है महीने के बाद. तो असेसमेंट तो मेरी भी हो रही है लेकिन महीने के बाद हो रही है. मुझे भी मॉनिटर किया जा रहा है. जब हर महीने मैं प्रेजेंट करता हूँ अपने सारे जो केपीआईज हैं उनको, तो मैं भी तो मॉनिटर हो रहा हूँ किसी ना किसी फॉर्म में. तो फॉर्म्स में भी चेंज्ड, बट आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर सारे केपीआईज हटा दो या परफॉर्मेंस मेजर्स हटा दो. यस वी डू ट्रस्ट. जब भी मैं एक बात शुरू से कह रहा था कि हम उस लेवल को जो है वो कभी भी इस तरह नहीं समझाते जाके कि भाई तुम पे हमने ये पुलिसिंग शुरू कर दी है, ऐसे नहीं समझाते. उनको ये मैसेज बहुत डिफरेंट अंदाज में दिया जाता है, बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स के साथ दिया जाता है, ताकि उनको ये लगे भी नहीं कि यार हमारे लिए ला रहे हैं. हम उनको बताते हैं कि जी प्रोसेस एफिशिएंसी होगी, इससे तुम्हें ये फायदा होगा, तुम्हारी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी. अभी तुम जो है वो 7 बजे अपने घर जाते हो, तुम 6 बजे. और ऐसा हुआ भी कि वो लोग जो 7-7 बजे 6:30 बजे गेट आउट करते थे ब्रांच से, वो 5 बजे अपने घर जाने शुरू हो गए. और उसमें से कुछ लोगों ने आके तो बड़ी दुआएं भी दी. उन्होंने कहा यार थैंक यू सो मच, अदरवाइज हमारे पास ये सिस्टम नहीं थे. क्योंकि एक एक वैन में 2 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक वो होता है जो सप्लाई ऑफिसर होता है.
तो लोगों ने आके मुझे ये भी कहा कि बहुत अच्छा हुआ आपने ये कर दिया, वरना ड्राइवर तो हमारी सुनता ही नहीं था, वो तो अपनी मर्जी से गाड़ी घुमाता रहता था। अच्छा हुआ आपने ये लगा दिया ताकि अब हम अपना काम करते हैं, सुकून से घर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो इट्स अ टू वे थिंग, इट्स नॉट लाइक कि हम उन पे कोई पुलिसिंग कर रहे हैं। तो और ये करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल आपके बिजनेस चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उमर, तो वहां पे आपको इस तरह की वो इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। प्लस ये कि फॉर एग्जाम्पल चले मान लेते हैं कि 50% लोग वो हैं जो सही काम कर रहे हैं, 50% वो हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपने समझा दिया, ट्रेन कर दिया, ट्रस्ट के लेक्चर्स दे दिए, सब कुछ करवा लिया, बट फिर भी वो 50% विल रिमेन देयर, वो नहीं करेंगे। तो ये करना ज्यादा खतरनाक होगा कि उन 50% के लिए आप वो सिस्टम लगा दें और 50 को बोलें कि यार वी हैव ट्रस्ट ऑन यू। तो वो जरा डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी वो हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी इस तरह के सिस्टम्स या वो अक्रॉस द बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि किसी को मैसेज ये ना जाए कि उसकी पुलिसिंग हो रही है, और आप जस्ट ये मैसेज दें कि भाई कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहती है। तो इस तरह से उमर इन चीजों को हैंडल किया जाता है। आई होप इट क्लैरिफाइज। अगर कोई क्यूरी है तो आप यू कैन स्टिल क्वेश्चन। ओके, असदुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Ji, Assalamu alaikum. First of all, Bilal, वालेकुम thank you सलाम। so much for the great insights. Very helpful, very useful. So, I actually have a very specific question in this sense. Recently, मैं भी काफी interested था into the logistics of how the COVID vaccine is being handled, right? तो ये एक बड़ा challenge है कि जिसकी storage के issues हैं, तो इसके availability के issues हैं। तो मेरा question ये है कि how are companies specifically or industries in Pakistan are getting ready, one कि भाई हमारे पास वैक्सीन आएगी, हमने उसको स्टोर करना है, फिर उसकी जो स्टोरेज मैकेनिज्म है पूरे करने हैं, एंड मेकिंग श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त आई अंडरस्टैंड कि कोविड वैक्सीन इज लाइक ऑन द टॉप और पीक ऑफ इट्स डिमांड। मे बी इन 6 months और ईयर डाउन द रोड शायद इतनी डिमांड नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है एक कॉस्ट है उसके साथ अटैच कि हम इतना बड़ा वेयर हाउस चिलर बना लें, हम 1 साल तक कैसे फिर पालेंगे। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या इन्वेंटरी बेस्ड कंपनीज हैं वो क्या सोच रहे हैं, एंड व्हाट आर द प्लानिंग और हाउ आर दे मेकिंग देयर रोड मैप। तो ऐसी बात, इस तरह के क्रॉस रोड्स आते रहते हैं डिफरेंट टाइम पे, तो इस वक्त जो है वो कोविड वैक्सीन के, तो इफ यू कैन लाइक लाइट ऑन दैट। Sure. Thank you, Asad. Cold chain management is an emerging field in Pakistan. Many companies and many groups which have financial strengths are developing the cold chain warehouses, not for the vaccine or pharmaceutical only, because the high dependency on the frozen food items. We have all witnessed in past 3 or 4 years, frozen foods का जो business था वो पहले इतना नहीं होता था। पहले जो है वो इस तरह से उसकी ना मार्केट इतनी ज्यादा थी, ना इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी, ना कुछ था। बट अब विद टाइम जो है ना वो फ्रोजन फूड की जो इंडस्ट्री है वो बहुत एक्सपेंड कर रही है, राइट? तो उसके लिए भी कोल्ड चेन वेयर हाउसेज, कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जितनी डिमांड है। तो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, लाइक मैं पाकिस्तान के जितने बड़े ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल लकी है, गनी एंड तैयब वाले हैं, और DHL तो खैर ग्लोबल चेन है, उनके ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे वेयर हाउस। अल राजिक वाले हैं, ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। TCS जो है वो एक्सपेंड कर रहा है कोल्ड चेन, क्योंकि कोल्ड चेन की लिमिटेड वेयर हाउसेज और ट्रांसपोर्टेशन है जो अवेलेबल है। तो जितनी भी बड़ी चेन्स हैं वो इस वक्त दे आर वेरी मच इनटू इट, और वो जितना भी उनके पास पैसा है वो कोल्ड चेन पे लगा रहे हैं, नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर वैक्सीन बट टू केटर द लोकल नीड्स ऑफ फ्रोजन फूड आइटम्स। इसी तरह रंगून वाला ग्रुप है, वो उनके वेयर हाउसेज बहुत बड़े बड़े वो लोग बना रहे हैं, अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। तो इट्स एन इमर्जिंग फील्ड, कोल्ड चेन मैनेजमेंट इज एन इमर्जिंग थिंग इन पाकिस्तान, आई मस्ट से के। और ये बिजनेस भी जो है अगर कोई इसमें जा रहा है इस वक्त, तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। और जिस लेवल की कोल्ड चेन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा ना कोल्ड चेन के लिए तो प्रोडक्ट जैसे जैसे मूव हो रही है ना, उसका टेम्परेचर भी उसी तरह आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कोल्ड चेन भी कुछ इस तरह की कोल्ड चेन भी एग्जिस्ट कर रही है कि सामान वेयर हाउस में रख दिया, वेयर हाउस का टेम्परेचर तो 24/7 नोट हो रहा है, बट वो सामान निकल के जो कस्टमर के पास डिलीवरी के लिए जा रहा है उस वैन का टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करता। वो कहते हैं जी गाड़ी जो है ना वो चिल्ड वैन है, रीफर है, और हमने उसके अंदर स्क्रीन लगाई हुई है, वहां से हमें पता चलता रहता है कि गाड़ी का टेम्परेचर इतना रहा है। जब उनसे कहो रिकॉर्ड कहाँ है, तो वो कहते हैं जी रिकॉर्ड नहीं। तो वो सिस्टम जो 100% टेम्परेचर को मॉनिटर नहीं कर सकता एंड टू एंड, वो कोल्ड चेन मैनेजमेंट नहीं कहलाती। लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन भी है पाकिस्तान में कि जी वो हम कोल्ड चेन हैंडल कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ना आप कोल्ड चेन हैंडल कर रहे हैं, तो इट मींस कि आपके पास
एंड टू एंड पोर्ट से आपने प्रोडक्ट रिसीव किया, आपने फॉर एग्जांपल अपने प्लांट पे मैन्युफैक्चर की, वहां के टेम्परेचर से लेके कस्टमर की साइट पे डिलीवरी तक का टेम्परेचर एक एक मिनट का आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो कोल्ड चेन मैनेजमेंट कहलाती है। और ये ज्यादा क्रिटिकल फ्रोजन फूड्स में इतना नहीं होता, क्योंकि फ्रोजन ज्यादा मतलब खाना ही है ना, वो खाना तो खराब हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। बट इन केस ऑफ वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल डिवाइसेस, वहां पे आपको नहीं पता चलेगा कि वो खराब हो गई है। फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन है, उसका टेम्परेचर आउट हो गया और आपने उसकी डोज, उसका शॉट ले लिया, तो वो फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी चेंज होती है, उसकी प्रोडक्ट की एफिकेसी खत्म हो जाती है। वो प्रोडक्ट जो है वो एफिशिएंट नहीं रहती, उसका जो रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी में वो नहीं रह जाता जो एक्चुअली होना चाहिए था। तो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज सीरियसली लैकिंग इन पाकिस्तान। वेरी फ्यू कंपनीज जिसमें जो ग्लोबल है, एक तो डीएचएल है उनके पास है, एक दो और राजिक इंटरनेशनल है, एजिलिटी वाले हैं उनके पास है, और ये मर्क्स वाले हैं उनके पास है। इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स हैं सिर्फ अभी उनके पास है। लोकल्स में कोई भी मुझे नहीं नजर आया कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग हो कोल्ड चेन मैनेजमेंट के हवाले से। तो असद, एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क? Yeah, so that's great insight. तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि so you're saying कि जो पाकिस्तान की cold chain infrastructure है, that on the whole is something that's underdeveloped right now. Yeah. So not just for specifically for vaccine, you're saying कि अभी हमें वैसी बहुत जरूरत है कि cold chain का अगर आप warehouse Exactly. बना लें तो वैसे ही आपको long term का ही plan है। Yes, exactly. It's a very great business opportunity. अगर और ये कर रहे हैं जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, अगर आप जाके देखेंगे ना इनके फ्यूचर प्लान्स में या इनकी स्ट्रेटेजी में फॉर नेक्स्ट 10 years, they all are getting into the cold chain management side, क्योंकि ये एक इमर्जिंग नीड है पाकिस्तान की। Great, thank you so much, Bilal. Thank you, Asad. So I think let's wind it up, otherwise it will continue for another hour. ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच। एक थोड़ा सा आप कुछ रौश के का भी बता दें कि आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, हाउ यू बीन हैंडलिंग। रोश में आई हैव बीन हैंडलिंग दी मेडिकल डिवाइसेस डिवीजन। यहाँ पर जो सप्लाई चेन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, अच्छा हम जो है क्योंकि हमारी डिवाइसेस हैं, मैंने कहा कि उसके लिए 100% इम्पोर्टेंट होता है कि टेम्परेचर्स आपके पास हों मिनट बाय मिनट। तो हमारे यहाँ पर जो है वो वेयर हाउसेज भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑल द टाइम होती है, 24/7 उसका रिकॉर्ड सिस्टम में मेंटेन होता है, किसी वक्त भी अवेलेबल होता है। अगर कोई टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है तो अलार्म्स होते हैं, मोबाइल पे मैसेजेस आ जाते हैं। वो प्रोग्राम इस तरह का डिजाइंड है। इसी तरह से जब ट्रांसपोर्टेशन हमारी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारे जो पैक्स बनते हैं, जो पैकेजिंग होती है, उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसको हम टेम्पोर्ट डिवाइस या टेम्परेचर डेटा लॉगर बोलते हैं। वो डिवाइस साथ में ट्रेवल करती है कस्टमर की साइट तक, और उसका डेटा भी वो सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। और कल हमसे कोई भी कस्टमर, फॉर एग्जांपल हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक्स होते हैं, या जो लैब्स होती हैं जितनी भी, आगा खान हो गया, शिफा इंटरनेशनल है, शौकत खानम है, जितने बड़े हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल, साउथ सिटी, दे ऑल आर अवर कस्टमर्स। किसी भी वक्त अगर कस्टमर हमें कहता है कि जी मुझे आज जो डिलीवरी आई है ना, इसका मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल दे दें आप, तो हमारे यहाँ एक बैक सपोर्ट ऑफिस में एक टीम होती है, वो उस रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करती है और उनको भेज देती है कि जी ये आपकी कोल्ड चेन का वो है। और हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे वेयर हाउसेज में कि आप आके देखें हमारा कोल्ड चेन हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं। वो हमारी कोल्ड चेन को देखते हैं, उस पर उनका ट्रस्ट है, जितने भी बड़े कस्टमर्स हैं उस पर उनका ट्रस्ट है, वो आके देखते हैं उसको। किसी वक्त भी कोई रिकॉर्ड मांगते हैं हम उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम तो क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल है हमारी जो चीज़ है, वो पेशेंट की लाइफ से रिलेटेड, या पेशेंट की जो डायग्नोसिस अगर गलत हो जाए तो उसका पूरा ट्रीटमेंट ही गलत चला जाता है। तो उस हवाले से हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने रॉश के या एक हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा, एक्सपीरियंस एज अ सप्लाई चेन पर्सन, एक चीज़ होती है रिलेशनशिप्स, जिसको ना हम सब लोग अब ये बहुत सारी बातें हमने कर ली, सिस्टम बना लो, डिज़ाइन कर लो, प्रोसेस डिज़ाइन कर लो, मॉनिटरिंग कर लो, सुपरवाइजिंग कर लो, ये सब कर लो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है जो सबसे ज़्यादा सर्व करती है, वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स बहुत काम आते हैं। रिलेशनशिप्स कैसे काम आते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या आपके जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, अगर उनके साथ आप अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके नहीं चल रहे, तो होगा क्या? होगा ये कि कोविड जैसा कोई अनप्रेसिडेंटेड टाइम आएगा और वो सब अपने हाथ ऐसे कर देंगे कि हम आपको सर्विस नहीं दे सकते।
अब आप चला लें अपना बिजनेस, कैसे चलाएंगे? क्योंकि इट्स एन इंटीग्रेटेड थिंग, आप हर चीज खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजों के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे होते हैं, आपने वेंडर्स रखे होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स रखे होते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स रखे होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स रखे होते हैं। तो अगर आप अच्छे टाइम में उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट मी, बुरे टाइम में वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और ये बहुत सारी कंपनीज को ये फेस करना पड़ा है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किए थे। कोविड टाइम्स में उन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जाहिर है कोविड था, कोई मजाक नहीं था, लोग मर रहे थे। जो बाहर निकल रहा था वो एक्सपोजर पे था, वो रिस्क पे था। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरसिटी, वो सब बंद हो गई थी। ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां निकल रही थी तो वो उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। एमएनपी जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, इन्होंने रिफ्यूज कर दिए थे कि हम, ऑल्दो, क्योंकि इट कम्स अंडर द फोर्स मेज्योर। हर एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है जिसको कहते हैं फोर्स मेज्योर। उसमें ये होता है कि भाई अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई ना, कि कोई वॉर हो जाती है, कोई फ्लड आ गया, कोई ये इस तरह की चीजें हो गई, तो उस केस में वी आर नॉट बाउंड टू गिव यू सर्विसेज। अब आप क्या करेंगे? ये एक फोर्स मेजोर वाली थिंग थी। ये जो कोविड आया है तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना किसी ने अपने एग्रीमेंट्स में कवर किया हुआ था। तो रेसिपी क्या थी कि आपने जो है वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, अपनी सप्लाई चेन को सीमलेस रखा। आपने कहीं पर भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई थी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आने दी। The only thing which in my personal experience is I maintained very good relationships with all the stakeholders. और जब भी मैंने किसी को कोई काम के लिए कहा तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे भाई, ये मसला है। उसने ये कहा कि इट्स डिफिकल्ट बट लेट्स सिट टुगेदर एंड सी हाउ कैन वी डू इट। तो ये एक ऐसी चीज थी जो जिसने मुझे बहुत ज्यादा सर्व किया। और मेरा जो पूरा 2020 वाला टाइम था रोश में, उसमें क्योंकि मैंने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आने दी। अब जाहिर है क्योंकि जब ऑल्दो कंपनी पीछे होती है बट कंपनी का जो फेस होते हैं वो आप होते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर से, सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके साथ आप डील कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट द कंपनी, इट्स यू हु आर डीलिंग विद एवरीवन। तो अगर आपने वो डील अच्छी की हुई थी, रिलेशनशिप अच्छे थे, तो उन्होंने आपका साथ दिया। अगर आप नहीं देते तो मे बी शायद आज मैं नौकरी पे भी नहीं होता यार, सीधी सी बात। जब काम ही नहीं होता पूरे साल, बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं कर पाता मैं कंपनी के लिए, मैं प्रोडक्ट ही सप्लाई नहीं कर पाता टाइम के ऊपर, तो देयर इज नो पॉइंट ना कि कंपनी मुझे कहती जी आपको फिर भी रखेंगे। तो उस चीज़ पे मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिली, मुझे बहुत जो है वो समझें कि एक्नॉलेजमेंट मिली। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन आई गॉट प्रमोटेड रिसेंटली और सीनियर मैनेजर भी बन गया। तो माशाल्लाह। ये वो हाँ चीजें नहीं, यू आर होती राइट। हैं। सो रिलेशनशिप्स तो बहुत रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग द, वो हम बात भी करते हैं, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली, विन विन पे एक एग्जांपल भी है बड़ी अच्छी, मैं शेयर कर लेता हूँ सब लोगों के साथ समझाने के लिए, जस्ट के वो समझ में आ जाए। अच्छा, होता ये कि आम हालात में ना आप बहुत ही छोटे से मार्जिन के लिए, मैंने इसीलिए एक वर्ड यूज किया था अपने बात करने के टाइम पे कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएं। ये नहीं हो कि बस शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाला और आगे बढ़ जाए। ऐसा होता है कि मेरे हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि मैं ना लोगों के मार्जिन को कट कर दूं, लोगों के प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा काट दूं और कंपनी को दिखा दूं कि देखें जी इतना फायदा करा दिया आप। बट ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच है। आपको हमेशा जो सर ने अभी वर्ड यूज किया ना, विन विन, वो बहुत अच्छा है। इसकी एग्जाम्पल समझने की ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑरेंज का एक फॉर्म है, शायद में भी आपने कुछ लोगों ने वो एग्जाम्पल सुनी भी हो। ऑरेंजेस का एक फॉर्म है और वालिद साहब की डेथ हो जाती है, दो भाई हैं। अब वो दोनों में ना झगड़ा हो रहा है कि कौन कितने % फार्म जो है वो लेगा। अब इसमें जो है वो विन विन क्या होगा, कोई अगर आंसर करना चाहे। 50-50 से 50-50 कर दें, एग्जैक्टली। तो पहला जो जवाब है ना ह्यूमन के दिमाग में, वो यही आता है कि यार 50-50 करो और बस विन विन हो गया दोनों के लिए। अच्छा, अगर एक को 30 दे दें, एक को 70 दे दें, तो वो एक के लिए विन है और एक के लिए लूज है। और अभी अविनाश ने कहा कि यार 50-50 दे दें, बात खत्म और हो गया विन विन। तो दिस इज नॉट विन विन, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। 50-50 जब आपने दिया ना तो ये आपने कॉम्प्रोमाइज किया। विन विन को ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत ये होती है कि आप दोनों भाई बैठ जाएं कि यार देखो ये है टोटल फॉर्म। एक तरीका ये है कि हम दोनों लड़ें
और तबाह हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो, सब कुछ हो। दूसरा तरीका ये है जो अविनाश ने कहा कि 50 तुम रख लो 50 मैं रख लेता हूँ। विन विन क्या होगा कि यार देखो एक काम करते हैं, तुम एक फैक्ट्री लगा लो जिसमें तुम ऑरेंज जूस सप्लाई करो, मैं एक फैक्ट्री लगा लेता हूँ जिसमें मैं इसके छिलकों से कुछ कर लूंगा। तो जो उसका पल्प है वो तुम ले लो 100%, जो पूरा पील है वो मैं ले लूंगा पूरा 100%। तो दिस इज कॉल्ड विन विन। तो आपको बिजनेस सिचुएशंस के अंदर भी ना, बजाय इसके कि आप एक फिक्स माइंडसेट पे सोचें और आप कहें कि यार बस आधा आधा ही जो है ना विन विन होता है, ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीजों को लॉन्ग टर्म में सोच के आपको ये पल्प और पील इनको करके और विन विन सिचुएशन इस तरह निकालनी पड़ती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो अच्छा, मच। great, thank you. That example is also a good one. तो ये हमने काफी टाइम भी कर लिया, काफी अच्छा ये हुआ। बस एक मेरी तरफ से लास्ट वो है, कोई नए इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं जीएसके में आजकल, ज्ञान विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सप्लाई चेन, या कोई ऐसी चीज जो कि हम की लोग है अभी recently? रिसेंटली अभी हमने की नहीं, बट हमारे वो लास्ट ईयर जाहिर है, लास्ट ईयर तो बिजनेस कंटिन्यूटी वाज अ चैलेंज, तो डेफिनेटली कोई ऐसे इनिशिएटिव पे काम नहीं हो सका। उस वक्त तो यही था कि बस बिजनेस ही कंटिन्यू कर जाए तो बड़ी बात है। बट इस तरह के कुछ हाँ, इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं जिसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट या उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कि कुछ कैमराज इस तरह के अब आ रहे हैं जो एक होता था स्टॉक को जब आप डिस्पैच करते हैं तो आप वेरीफाई करते थे मैनुअली। उसके लिए हम एक प्रोसेस, एक डिजाइन पे काम कर रहे हैं जिसमें यह है कि कैमराज हैं उसके अंदर जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे वो कार्टन्स को खुद से रीड कर लेगा। जब उसकी हैंडलिंग हो रही होगी तो वो उसको स्कैन कर लेगा ड्यूरिंग द टाइम इट वाज इन द हैंड ऑफ पैकर्स एंड द लोडिंग गाय। वहां से वो उसको खुद से ट्रैक करेगा और सिस्टम में एक्यूरेसी को रिकॉर्ड करता जाएगा कि क्या ऑर्डर सही डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से अगर कहीं पे वो लूज चीजों को पैक करने की बात हो रही है तो वहां पर भी वो कैमरा जो ऊपर लगा होगा, जिस एरिया में जो पैकिंग एरिया होता है उसमें हम सोच रहे हैं वो कैमरा इंस्टॉल करने का, और वहां पे जिन प्रोडक्ट्स की भी हैंडलिंग हो रही होगी वो ऑटोमेटिकली उसको हमारी इन्वेंट्री में से माइनस करता जाएगा कि ये प्रोडक्ट हैंडल होके और पैक होके चले गए। तो अभी फिलहाल हम, लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं। अभी पाकिस्तान में हमने एक दो कंपनीज के साथ इसको डिस्कस किया है, बट वो यही है कि इस इतना अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों को नहीं है, तो हम बस अभी समझने के बहुत ही इनिशियल फेज में है। जब कभी हो जाएगा तो इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। चलें, श्योर इंशाल्लाह। कोई आपकी कोई मतलब जाहिर है डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज में मेडिसिन होंगी। मैंने आई वाज जीएसके का मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, उनसे डिस्कशन हो रही थी, तो वो लोग कोई डायरेक्ट शिपमेंट मॉडल पे भी गए इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो काउंटर फीट्स उनके बाज़ार में आ जाते हैं, तो कंपनी का नाम भी उसमें ख़राब होता है। और फिर और फिर उन्होंने जब कॉस्टिंग निकाली तो डिस्ट्रीब्यूशन रखना और ये सब करना वर्सेस वो डायरेक्टली कस्टमर को भेज देना, दे वर वर्किंग ऑन दैट एक्चुअली। तो जीएसके नहीं, सॉरी, आई थिंक द नाम एग्जैक्टली नहीं याद है। दे वर्किंग ऑन अ डायरेक्ट शिपमेंट मॉडल एज वेल। अच्छा, तो हमारी प्रोडक्ट्स में डॉक्टर कामरान GTIN होता है एक नंबर ना। GTIN एक, हाँ, एक हर प्रोडक्ट के ऊपर एक, क्योंकि वी आर इन दी स्पेशलिटी मेडिसिन और दैट्स टू वेरी एक्सपेंसिव। हम लोग जो कार्डियो या ऑन्कोलॉजी, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की जो स्पेशल डिजीजेज हैं उसकी मेडिसिन देते हैं, और हमारे जो डायग्नोस्टिक्स के जो टूल्स हैं जो वो भी बिल्कुल हाँ, तो दे वुड बी वेरी एक्सपेंसिव देन एज वेल, राइट? या तो उन पे GTIN नंबर होता है, और उसको आप जब स्कैन करते हैं, एप्लीकेशन है GTIN का ग्लोबल, उस पे जब आप कोई भी कस्टमर स्कैन करता है तो उसको कंफर्म कर देता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या काउंटरफीट है। तो वी हैव फुल प्रूफ सिस्टम फॉर दैट। या एग्जैक्टली, सही है। तो इसको कैसे करेगा? अगर कस्टमर कोई लेने जा रहा है तो ही कैन डू दैट ऑन? नहीं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हैं, वो रिटेल पे नहीं होती। अच्छा, ठीक है, वो कंपनी, वो ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह वो लोग कर लेंगे। हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं। हमारी सिर्फ रिटेल प्रोडक्ट एक ही है जो वो एक्यूचेक डिवाइस होती है, ग्लूकोमीटर जो घरों में सब यूज करते हैं ना, वसीम अकरम बना होता है उसको, बस सिर्फ वो डिवाइस हमारी है, बाकी और कुछ नहीं है। सही है, ठीक। चलिए, वंडरफुल बिलाल, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन, काफी इंसाइटफुल, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स एंजॉयड एज वेल, जो काफी इंटरेक्टिव उन्होंने सवाल भी पूछे। सो और कोई सवाल तो नहीं है बिफोर वी क्लोज? आई थिंक काफी इंटरेक्शन हमारी ऑलरेडी हो चुकी।
बिलाल साहब, मेरा एक सवाल था, बट आई डोंट नो, हम लोग काफी आगे आ गए हैं। जी जी अविनाश प्लीज। तो you said something about the RFT जब आप अबू दाऊद में होते थे, कि सप्लाई चेन वाले और मार्केटिंग वालों का जो एक इंटरेक्शन होता है आपस में, कि मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि यार हमें ये चीज़ मार्केट में पहुंचानी है, बट सप्लाई चेन वाले अपनी एक प्रोडक्शन में लगे हुए होते हैं, एंड दे हैव टू मेक डिस्पैचेस एवरी नाउ एंड देन। सो वहाँ पे जो एक मिसकम्युनिकेशन का एक बीच में गैप आता है हमारे पास, कि मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ मार्केट में पहुंचानी है, एंड प्रोडक्शन वाले जो हैं वो अपनी एंड से प्रोडक्शन करके, उनको ऑब्वियसली प्रोडक्शन टारगेट्स होते हैं उनके पास, तो वो प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करने के लिए वो अपने एंड से अपनी प्रोडक्ट अपने हिसाब से प्रोडक्ट चलाएंगे और वो मार्केट में निकाल देते हैं। सो आप लोग ने एक RFT का एक इसमें कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोड्यूस किया था अपने बीच में, तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसमें अपनी क्या एक चीज है जिस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकें? जी जी Avinash, thank you for the question. The RFT I explained is more related to the warehousing operations. However, I got your question जो आपने कहा ना कि दोनों में डिफरेंस होता है कि वो बेचने का कुछ प्लान कर रहे हैं और वो बना कुछ रहे हैं। ये पुरानी सप्लाई चेन्स में होता था जहाँ पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या जो कन्वेंशनली एक बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स में लोग काम कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए ना अब एक मीटिंग होती है, हाफ डे या फुल डे की एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं S&OP, सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। S&OP के अंदर जो है ना मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, प्लानिंग, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं और वो बैठ के उसमें ये पूरा प्लान करते हैं कि मुझे क्या बेचना है, जो उसको बेचना है मैं वो बनाऊंगा, वो मैं किस तरह बनाऊंगा, वो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला प्लान करेगा किस दिन क्या बनेगा। तो ये सारी प्रायोरिटी सेटिंग के लिए वो एक S&OP की मीटिंग अब हर अच्छी कंपनी करती है। हर महीने के पहले हफ्ते में S&OP की मीटिंग होती है। कुछ कंपनीज में क्वार्टर होती है, कुछ में जो है वो मंथली होती है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। वहां पे वो ये सारी चीजें अलाइन कर लेते हैं ताकि ये गैप खत्म हो जाए। And if you want to introduce it in a system as well, like Oracle वगैरह में अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो is it possible? उसमें ऑलरेडी उसके मॉड्यूल्स हैं पूरे। ओरेकल में भी मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है और SAP में भी मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, जिसमें आप इस तरह के प्लानिंग या इस तरह के जो फ्यूचर के ऑर्डर्स हैं, डिमांड है, उसको आप डाल सकते हैं। बट देखें वो सिस्टम है, सिस्टम को चलना कैसे ये इंसानों को ही बताना पड़ता है। तो उस सिस्टम को चलना कैसे है उसको बताने के लिए ना ये सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के अलाइन करते हैं। S&OP कहते हैं सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। इसके बारे में आप पढ़ेंगे ना तो आपको मोर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन S&OP। उसमें फिर ये गैप वाला मसला खत्म हो जाता है। बिल्कुल जो आपने कहा कि बेचना कुछ है और बन कुछ रहा है, ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक यू अविनाश। थैंक यू बिलाल साहब। Thank you once again, Bilal, and pleasure having you again. It was very insightful, and I think students, जैसे मैंने कहा, they also enjoyed and learned. तो I think हमारी एक पिक्चर भी हरीम इज़ार TA for this course, तो उन्होंने पहले ही जो है मैं क्लोजिंग से पहले ही हमारी एक पिक्चर ले ली है, so I'll send you later inshallah. Sure. चलें. Sure. So Thank you so all much, the best. Dr. Kamran, and Thank you everyone. for joining. Yeah. That's a learning experience for me as well. Thanks for sharing the examples from your experience also. Thank you so much, everyone, Challenge. and Thank good you luck. so much. Thank you so much. Thank you. Allah Thank you Hafiz. so Take much. care. Allah Hafiz. Hafiz. Thank you, Bilal.